फाइनल ट्रेड में आप सबका स्वागत है और आगे बढ़ने से पहले चलते हैं सीधे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। मुंबई में वो बातचीत कर रही हैं, आइए सुनते हैं क्या कहना है उनका। Particularly after the second wave and also sort of reviewing what was announced through the Atmanirbhar Bharat, several announcements, how the banks have taken it all forward, and now post the second wave, the announcements which have been made, we would like the banks also to have their role to take it forward to the sections for whom they are designed and aimed at. Over and above that, clearly, I've requested the banks to have at various regional levels interaction with export promotion agencies, with the chambers of commerce and industry, so that the requirement of exporters can all be timely, well addressed, and between public sector banks there should be some kind of a simple but yet a uniform approach, so that exporters are not made to run between one bank and another, scouting to see where the offer is better. So public sector banks have all been requested to have that interaction, not just with the export-oriented industries, but also with their chambers and with their Federation of Indian Exporters Organization, the FIO. Other than that, both Debashish Panda and myself have highlighted the fact that today's nature of banking is also changing. We see even from industry inputs that people are able to raise finances even outside of the banking system. Several decades post-independence, India has depended only through the banks, funds which businesses would want to have. Now industry themselves recognize that they have avenues outside of the banks, in that they are able to go to the market and raise enough revenues. Even our banks themselves have raised revenues from the markets. So there was a bit of a discussion on those avenues also to be understood by the banks and focus on how they can extend credit to wherever it is required. In that, we've also, just as we placed emphasis on the export-oriented industries, we've underlined the fact that Prime Minister has been emphasizing all over the country that there should be by district an identification of such goods which can be found to have great export potential. And that is why you had this one district, one product. In Uttar Pradesh, only a few days ago I had gone, and both the SIDBI and the Exim Bank were with me to carry that forward in the name of Ubarte Sitare, where you identify champions within that particular chosen sector and help them to do everything it takes for exporting the products. In that, credit will be given, assistance will be provided for technology infusion, and also hand-holding will happen for export of products. So I've requested all the banks all over the country to work with state governments and ensure that by district, that one district, one product also gets benefit from the banks. SIDBI and Exim Bank together are also helping in providing cluster facilitation for such things, and also providing common infrastructure which will be required by these export potential manufacturers who are largely in small and medium areas, but for them to have a common infrastructure within that district as is required by that product manufacturer, banks can also play a role. We have highlighted that. Other than that, I have, from the inputs that I've received from the industry, from the input I've received from the direct taxation and indirect taxation field formations, we understand that a lot of sunrise sectors require a lot of banking assistance. And identifying these sunrise sectors, I've asked the banks to extend themselves to understand what will be their financial requirement and try facilitating them. Fintech is one of the areas in which banks are doing quite a lot of work.
I've highlighted to them that there are two aspects. One, of course, for the banks themselves to have the benefit of technology being used, and another, fintech as a sector itself also requires a lot of assistance. I've asked banks to please look at that area as well and approach through various other information systems that they may have such people who are already furthering their businesses, but that is one of the ways in which we can provide greater stimulus. And lastly, about the banks, I've also requested banks to come up with specific plans for the Northeast so that businesses and requirements of the Northeast states, not one plan for all the 8 states, but to each according to their requirement, so that the logistics in the Northeast, so that exports from the Northeast, Prime Minister has emphasized again for the organic fruits and vegetables and the products which come out of the Northeast, which can find markets all over, for the banks also to make sure that that will happen. There is again a matter of concern which banks themselves have recognized, that in the eastern states, be it Orissa, be it Bihar, be it Jharkhand, and somewhat even for that matter West Bengal, where CASA deposits are actually piling up. And banks should now, as much as possible, also give that facility in that region for greater credit expansion. It's one thing to receive deposits, smaller, medium-sized deposits from that region, from the people who are living in that region, but to have a plan which is so desperately needed so that credit flow for business development in those regions can also be better promoted. So whilst the situation in the western and southern regions of the country, CASA is there, credit requirement is also there, so you are able to utilize that, earn better, and also give in better terms for the credit requirement, but that's not so much happening in the eastern and particularly the several states of eastern region. So these were elaborately discussed. I also repeat something which was said earlier. Collectively, public sector banks have all done well. They've come out of the PCA. Today, they are able to show clear profits. And individually, too, several banks have done very well. They've also shown that they are now in a position to go to the market and raise monies for their growth capital requirements. So today, you find the Indian public sector banks, even though they were going through the pandemic, even though they were extending all facilities for all the DBT beneficiaries and so on, through the Bank Mitra, and that is one thing on which I have repeatedly given credit to the banks for having undertaken these kind of work during the pandemic. The amalgamation work, which happened just prior to the pandemic, have not suffered because their attention has gone to serving during the pandemic. They have completed the process. Today, all banks are sufficiently endowed, and the processes of amalgamation has not let any customer to suffer. Seamlessly, the amalgamations have all happened, and most of the banks are comfortably reporting on the amalgamation related information. So we also launched the EASE, which is the Easy Access and Service Excellence, which was launched after 2015 when Prime Minister had addressed the banks through, what was that called? Gyan Sangam. In 2015, when Prime Minister addressed through the Gyan Sangam all the banks, and also spoke about details about how professional they should become, how they can improve on their service experience for the customers and so on. Since then, without any gap, EASE has been launched 1.0, then 2.0, 3.0, and for each one of them a report has been given about how the outcomes are. Banks have improved the customer experiences. Today we launched EASE 4.0.
even that has been achieved by the banks. So I'm glad. There is one announcement which I would want Debashish to himself say, which pertain to the benefits, pensionary benefits and so on. Debashish. This is in continuation of the 11th bipartite settlement which was signed by the IBA with the unions on 11/11/2020 on wage revision. So from it there was a proposal for enhancement in the family pension and also the employer's contribution under the national pension scheme. So this has also been approved by the Honorable Finance Minister, and the benefits would now accrue to the family pensioner. Earlier, the scheme had slabs of 15, 20 and 30% of the pay that the pensioner drew at that point of time, and it was capped subject to a maximum of 9,284 rupees. So that was a very paltry sum, and Madam Finance Minister was very much concerned and wanted that this should be revised so that they get a decent amount to survive and sustain. तो ये थी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पिछले 2 दिनों से कल और आज वित्त मंत्री मुंबई में है और मुंबई में उन्होंने इनकम टैक्स अधिकारियों के साथ और बाकी कई सारे टैक्स अथॉरिटीज के साथ मीटिंग्स की और आज सरकारी बैंकों के प्रमुखों के साथ भी उन्होंने मीटिंग की और उस मीटिंग के बाद वो सारे अपडेट्स देती हुई बैंक्स के कामकाज पर और साथ ही अधिकारियों से जो उनकी मीटिंग हुई उसके ऊपर। आइए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में और कुछ मुख्य अंश हम आपके सामने लेकर आएंगे, लेकिन उससे पहले अब वक्त है फाइनल ट्रेड में आपके लिए सारी डिटेल्स लाने का। शुरुआत करते हैं मानसी के साथ। मानसी बताएंगे हमें आज कल के लिए अहम ट्रिगर्स जिन पर बाजार की रहेगी नजर। मानसी बताइए। गुड आफ्टरनून अनिल सर, शुक्रिया। वैसे तो आज भी कई सारे इवेंट्स थे, लेकिन एक एक कर सारे इवेंट्स अब आउटकम निकलते हुए दिख रहे हैं। तो बच्चे जो हैं वो बता रही हूँ पीएनजी हाइजीन एंड हेल्थ केयर और मंधाना रिटेल वेंचर्स के नतीजे आ जाने वाले, इस पर फोकस है। और इसके अलावा बोरोसिल रिन्यूएबल पूंजी जुटाने को लेकर एक बोर्ड बैठक करने वाले हैं। कल कई सारे इवेंट्स, एक तो अगस्त सीरीज की एक्सपायरी होने जा रही है, मैकडोवेल होल्डिंग्स के नतीजे आते हुए दिखेंगे, साथ ही स्टार सीमेंट बायबैक की रिकॉर्ड डेट तय हो गई है। कल जो बायबैक की रिकॉर्ड डेट होगी, दाम जिसके 150 रुपए प्रति शेयर हैं। एफएल इंडिया शेयर विभाजन पर विचार करेगी कंपनी। वहीं अदानी ग्रीन एनर्जी पूंजी जुटाने को लेकर बोर्ड बैठक करेंगे। वैबको इंडिया का ओएफएस जो आज नॉन रिटेल निवेशकों के लिए खुला है, कल रिटेल निवेशकों के लिए खुलेगा। 26 से 28 अगस्त के बीच जैक्सन होल मीटिंग पर नजर रहेगी। और शुक्रवार के ट्रेडिंग सेशन की अगर ट्रिगर्स की बात करें, सितंबर सीरीज की शुरुआत होगी। 10 शेयर्स जो है वायदा बाजार का हिस्सा, वायदा बाजार में जिनकी एंट्री होती हुई दिखेगी, एमसीएक्स, कैनफिन होम, डिक्सन टेक्नोलॉजीज, एचएएल, आईएक्स, इंडिया मार्ट, इंटरमेश, इप्का लैब, ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज, पॉलीकैब और सिंजीन इंटरनेशनल। शुक्रवार के ही दिन पीएनबी, फिलिप्स, कार्बन और रामकृष्ण फोर्जिंग्स की पूंजी जुटाने को लेकर बोर्ड बैठक होगी। जैक्सन होल की बैठक का दूसरा दिन यूएस फेड चेयरमैन जेरोम पोवेल के संबोधन पर नजर रहेगी। साथ ही ऑरोबिंदो फार्मा शुक्रवार को एक्स डिविडेंड ट्रेड होता हुआ दिखेगा और एक शेयर 3i इन्फोटेक शुक्रवार को शेयर में ट्रेडिंग के आखिरी दिन होगा, यानी कि शुक्रवार की क्लोजिंग के साथ ही शेयर में ट्रेडिंग बंद हो जाएगी। ओके, तो ये है वो तमाम ट्रिगर्स जिन पर रखना है आपको फोकस। 3i इन्फोटेक पता नहीं क्यों हरे निशान में है, 5% ऊपर है। शुक्रवार को ट्रेडिंग बंद, यानी कि मेरे ख्याल से फिर कल आखिरी दिन रहेगा, परसों के बाद स्टॉक ट्रेड करना बंद हो जाएगा। तो कौन खरीदना चाह रहा है भगवान जाने। ध्यान रखें, पहले भी इस तरह के कई सारे स्टॉक्स में ऐसा हो चुका है, लोग बिना सोचे समझे खरीदे जा रहे हैं और पता चला बाद में डीलिस्ट हो रहा है। तो स्टॉक में ट्रेडिंग हो जाएगी बंद, आप सोच समझ कर खरीदें। आइए बढ़ते आगे और अब आज खबरों वाले शेयरों पर डाल लें नजर। वरुण हमारे साथ है बताने के लिए तैयार। वरुण बताइए कौन से स्टॉक्स हैं जो आज सुर्खियों में रहे हैं। अनिल जी, सुर्खियों में तो सबसे पहले एविएशन काउंटर्स रहे। हमने जो आपको खबर बताई कि एविएशन सेक्टर में बड़े रिफॉर्म्स की तैयारी है। सरकार का पूरी तरह से जो प्राइस कैप है वो हटाने पे विचार कर रही है सरकार, और एयरलाइंस उड़ाने की क्षमता जो है उसको बढ़ाकर 85% करने की अपील की गई है एयरलाइंस इंडस्ट्री द्वारा। तो इसका इम्पैक्ट जो है आपको स्पाइसजेट और इंटरग्लोब एविएशन पे देखने मिला। इसके अलावा गन्ने की जो एफआरपी है उसको बढ़ाने के लिए कैबिनेट की मंजूरी मिल चुकी है। 5 रुपए प्रति क्विंटल से इसकी एफआरपी जो है वो बढ़ा दी गई है। हमने आपको एक बार पहले ही बता दी थी। और कहीं ना कहीं सरकार जो है वो एक्सपोर्ट्स पे भी फोकस करना चाहती है।
कावेरी सीड्स यहाँ पे बायबैक का जो प्राइस है वो हमारे अनुमान से बेहतर आया है। 850 रुपए प्रति शेयर के भाव पे कंपनी बायबैक करेगी और ओपन मार्केट से कंपनी जो है वो बायबैक करने वाली है। बायबैक पे कंपनी करीब 120 करोड़ के आसपास खर्च करेगी। हालांकि जो साइज है वो कंपनी ने कम कर दिया है। 14.1 लाख शेयर जो है वो कंपनी बायबैक करने वाली है। इसके अलावा न्यूज वायर्स के हवाले से ये खबर आई कि रेवेन्यू सचिव का तरफ से बयान आया कि टैक्स दरों में ऑटो इंडस्ट्री से बातचीत करने को तैयार है। हालांकि जीएसटी में कोई बदलाव नहीं होगा और वैसे ऑटो कंपनी आज काफी हरकत में है। जेएसपीएल इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में कंपनी ने ये जानकारी दी कि कंपनी नेट लेवल पे डेट फ्री जल्द होना चाहती है और अपनी क्षमता को जो है वो ऑलमोस्ट दोगुना करने का विचार है। एमसीएक्स पर एनर्जी का जो इंडेक्स है वो शुरू करने के लिए अनुमति जो है इनको मिल चुकी है सेबी द्वारा। गेटवे डिस्ट्रीपार्क, गेटवे ईस्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और गेटवे रेल फ्रेट की कंपनी के मर्जर को मंजूरी मिल चुकी है। जेट एयरवेज या एनसीआरटी के जरिए इस कंपनी को नोटिस गया है कि कंपनी के कर्मचारी जो है उनकी याचिका पे नोटिस गया है। रेजोल्यूशन प्लान के खिलाफ जो है इस कंपनी के जो एम्प्लॉय है उन्होंने याचिका दी थी। एलाइट डिजिटल इस कंपनी को 650 करोड़ का ऑर्डर मिला है 6 साल का। बोरोसिल रिन्यूएबल्स 500 करोड़ तक जुटाने के लिए बोर्ड ने मंजूरी दी है। कुछ ब्लॉक डील्स, जेएसडब्ल्यू एनर्जी में 20 लाख, जोमेटो में 40 लाख, एनटीपीसी में 16 लाख शेयर की ब्लॉक डील और फिलाटेक्स इंडिया प्रेफरेंशियल आधार पर करीब 28 लाख शेयर ये कंपनी जो है वो जारी करेगी। 95 के भाव पर ये प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट जो है वो किया जाएगा। तो ये है वो तमाम खबरों वाले शेयर जहां पर आज है एक्शन भरपूर। आइए इसी एक्शन को बढ़ाते हैं आगे। क्लोजिंग शो में हमारे सारे मेहमान हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं। कुणाल जी, राकेश जी, आशु सर, वागले साहब, किरण जी और सच्चिदानंद उत्तेकर जी, आप सबका स्वागत है। पहला बिगुल वागले साहब के लिए, वागले का वंडर। बताएं वागले साहब। आफ्टरनून अनिल जी, आफ्टरनून दीपांशु। मेरे रडार पर आया है अडानी पोर्ट्स जो 720 का एक रेजिस्टेंस ब्रेक करने की तैयारी में है और ये होते ही मुझे एक 20 रुपए की मुंह दिखती है आज और कल में। तो 719 720 के बीच में अभी बाय करे। 710 का स्टॉप लॉस होगा और 740 का पहला टारगेट पोजिशनली 760 765 770 तक के अगले कुछ दिनों में 4 की जा। ओके, तो अदानी पोर्ट्स यहां पर खरीदारी करने की राय वागले साहब की तरफ से आती हुई दिख रही है और ये स्टॉक भी 3.5% की मजबूती के साथ आज बेहद शानदार प्रदर्शन करता हुआ दिख रहा है। 710 का लगाए स्टॉप लॉस, 740 765 का टारगेट। कुछ बेहतरीन कॉल्स आशीष सर के पास भी है, कुछ स्प्रेड्स भी और साथ ही साथ कुछ कैश कॉल्स भी। तो पहले एक बार स्प्रेड्स के लिए बिगुल और उसके बाद हम थोड़ी देर में कैश कॉल भी आशीष सर से लेंगे। स्विंग के सुल्तान आशु मिलान। बताएं आशु सर, स्प्रेड निफ्टी बैंक निफ्टी किस पर? अनिल जी 4-5 कॉल्स हैं। कैश की तो आपने पहले ही बोल दिया, बाद में देनी है तो वो भी इंपॉर्टेंट है, दूंगा। तो मैं अनिल जी एक फ्यूचर की है, एक निफ्टी स्प्रेड भी है, एक पुट भी लेनी है और सारी एक साथ अनिल जी एक एक करके देता हूं। तो अनिल जी पहले लॉन्ग कॉल देता हूं। जो लॉन्ग कॉल है अनिल जी वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज पे। रिलायंस इंडस्ट्रीज पे अनिल जी मुझे लगता है कि बहुत बड़ा मतलब अब मूव बनने को तैयार है। काफी टाइम से अनिल जी कंसोलिडेशन के अंदर था और कई बार मतलब ऊपर जाता भी है 2200 पर हमेशा अनिल जी वो न्यूज फ्लो पे जाता है। कभी एजीएम पे, कभी जियो का कुछ आ रहा है, कभी ये अनाउंसमेंट आएगी, कभी ये स्टेक स्केल हो गया और वहां पे वो पब्लिक घुसती है और ओवरबॉट होता है और हर महीने अनिल जी वो तंग करता है। पर मुझे लगता है कि अनिल जी अब इस बार बिना किसी न्यूज के मार्केट को स्ट्रेंथ देने के लिए बढ़ा है और अब ये जो मुझे लगता है अनिल जी ऊपर की जर्नी, हमारा लॉन्ग टर्म टारगेट तो अनिल जी बहुत बड़ा भी है, लेकिन अनिल जी 2175 के हिसाब के स्टॉप लॉस से रिलायंस इंडस्ट्री का फ्यूचर लॉन्ग कर रहे हैं। ये तो अनिल जी लॉन्ग कॉल है। दूसरी चीज अनिल जी, पहली एक कॉल, दूसरी कॉल है अनिल जी वो शॉर्ट कॉल है। बेसिकली अनिल जी जो कुछ स्टॉक है जो एक्सीडेंट के लिए तैयार रहते हैं, जो मैं हर बार आइडेंटिफाई करता हूं, हो चुका है, लेकिन अनिल जी कल भी मुझे लगता है कि और नीचे का घर बन सकता है, वो है जेएसडब्ल्यू स्टील। तो जेएसडब्ल्यू स्टील की अनिल जी पुट लेनी है 700 रुपए की, जो कि 13-14 रुपए का भाव चल रहा है। उस पुट को लेना है और अनिल जी वो मुझे लगता है कि 20 भी क्रॉस कर सकती है और अगर किसी को कम पैसे लगाने हैं तो 690 रुपए वाली पुट भी ले सकता है, लेकिन लेनी पुट है। अनिल जी मेटल स्टॉक्स है, ओवरनाइट मार्केट में कभी ऊंच नीच हो जाती है, तो बट मुझे लगता है कि अनिल जी क्योंकि बहुत बड़ी ऊंचे की लेवल से अनिल जी नीचे आया है, तो ये मतलब जो होता है ना जो कट जाते हैं मतलब वीक हैंड्स के, कहां तक वेट करेंगे। तो मुझे लगता है अनिल जी जेएसडब्ल्यू स्टील की 700 की है 690 की पुट, जो जिसको सूट करता है वो पुट लेके रखनी चाहिए कल तक के लिए, और अगर आज ही पैसे मिल जाए तो शाम तक खत्म कर सकते हैं।
और अनिल जी तीसरा कॉल है निफ्टी के ऊपर है। निफ्टी 661 चल रहा है। निफ्टी के अंदर जी 700 की पुट लेनी है, 16,700 की पुट लेनी है जिसका भाव चल रहा है 65-66 रुपए, और 16,600 की दो बेचनी है जिसका भाव चल रहा है 25 रुपए। ये स्प्रेड बनता है अनिल जी सिर्फ 16 रुपए में। 16 रुपए में अनिल जी अब निफ्टी का स्प्रेड बनता है 16,601 लॉन्ग पुट, 16,502 शॉर्ट। ये 16,400 तक सेफ है अनिल जी, बहुत बड़ा सपोर्ट लेवल है। और अनिल जी 16 रुपए लगा के आप नीचे के 200 रुपए में जो ऑलरेडी 40 रुपए इन द मनी है, 16 रुपए लगा के ऑलरेडी 40 रुपए इन द मनी है अनिल जी, ये ट्रेड भी मुझे लगता है हाथ में रखना चाहिए। रिस्क रिवॉर्ड बहुत फेवरेबल हो सकता है। 16 रुपए आपको 3 गुना पैसे दे सकते हैं। तो अनिल जी एक निफ्टी का स्प्रेड है, बीएस स्प्रेड 1:2। रिलायंस की लॉन्ग कॉल है, वो थोड़ी पोजिशनल भी है, वो रख सकते हैं। और जेएसडब्ल्यू की कल तक के लिए ये पुट बाइंग है। अनिल जी 2 कैश के स्टॉक्स है, आप जब कहेंगे मैं तब दे दूंगा, अगर अभी कहेंगे तो अभी दे दूंगा। मैं आपके पास आता हूं उससे जी आशु जी, उससे पहले एक बार क्लियर करना चाहता हूं, 16,700 का एक पुट खरीदना है और 16,500 के 2 पुट बेचने हैं, राइट? नहीं 16,600 के जी, 16,700 का लेना, एक सेकेंड, 16,700 का लेना है जी, 16,600 के 2 बेचने हैं। हाँ ओके परफेक्ट, बस वही कंफ्यूजन था, 16,600 के बेचने हैं, 16,500 के तक सेफ बेचने है। सॉरी तो खरीदना है आपको 16,500 तक सेफ है। या करेक्ट, ठीक है, 16,500 तक आप सेफ है। 16,600 के 2 पुट बेचिए, 16 रुपए 16,600 के 2 लेने हैं, बेचने हैं, ठीक, 16 रुपए की कॉस्टिंग और 16,500 तक सेफ है। ठीक बात है। तो ये है आपके लिए कुछ बेहतरीन कॉल्स। जी 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 ठीक बात है। तो ये है आपके लिए 3 कॉल्स, कुछ और बेहतरीन कॉल्स आने की तैयारी में। उससे पहले जल्दी से एक बिगुल जय के लिए जय का जैकपॉट। बताएं जय। गुड आफ्टरनून टू यू अनिल जी। अनिल जी एक कैश सेगमेंट का कॉल है, एसबीआई कार्ड्स खरीद कर चलने की सलाह है, जो करीब 1050 के आसपास ये ट्रेड कर रहा है, इसको खरीदना है। इस पे मेरे टारगेट्स थोड़ा एग्रेसिव है। पहला टारगेट अनिल जी यहाँ पे रहेगा 1110 का, सेकंड टारगेट बन रहा है 1140 का। सो 1110 1140 ये 2 टारगेट्स के लिए एसबीआई कार्ड्स को खरीदना है। डाउन साइड में हम स्टॉप लॉस लगा सकते हैं 1020 का। अब जो हिसाब से ये स्टॉक में एक क्लियरली कंसोलिडेटिंग रेंज बन रही है अनिल जी, मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे लार्जर चार्ट्स पर एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न फॉर्म हुआ है। अब या तो इसका बेस बन चुका है या तो ये अपर एंड ऑफ द रेंज तक जाएगा और फिर देखना है कि हमें ब्रेकआउट देता है कि नहीं। बट अगर इवन ये अपर एंड ऑफ द रेंज तक जाता है तो ये 1140 तक के सेकंड टारगेट्स हासिल करेगा। तो रिस्क रिवॉर्ड पॉइंट ऑफ व्यू अगर अनिल जी मैं देख रहा हूँ तो बहुत ही बढ़िया ट्रेड बनकर आ रहा है। इनफैक्ट 30 रुपए की डाउन साइड है, पहले टारगेट में ही 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड है एंड सेकंड टारगेट में लगभग 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड है। तो रिस्क रिवॉर्ड पॉइंट ऑफ व्यू मुझे ये ट्रेड काफी अच्छा लग रहा है एसबीआई कार्ड्स। और इसके वीकली इंडिकेटर्स काफी ओवरसोल्ड हो चुके हैं, डेली और मंथली ऑलरेडी बाय मोड में है। सो ओवरऑल अगर हम देखें तो ये कंसोलिडेटिंग रेंज के लोअर एंड से घुमा है और अपर एंड ऑफ द रेंज तक जाएगा। तो ये है आपके लिए एसबीआई कार्ड्स पर राय खरीदारी करने की। और जल्दी से एक बिगुल यहाँ पर सचिन जी के लिए भी, उनकी तरफ से भी एक बेहतरीन गोल। सचिन जी बताएं सर। गुड आफ्टरनून अनिल जी, गुड आफ्टरनून दीपांशु। अनिल जी कॉल सेम है एसबीआई कार्ड। यहाँ पर मैं डिस्क्लेमर देना चाहूँगा, आधे घंटे पहले ही हमने हमारे क्लाइंट्स को ये ट्रेड रेकमेंड किया हुआ है। सो जिस तरीके से स्ट्रक्चर है, लगभग एक बुलिश इंपल्सिव वेव का ब्रेकआउट ऑलरेडी आ चुका है। लगभग अराउंड 1130 के आसपास की प्राइस एक्सपेक्टेशन होगी, तो खरीदारी करनी है एसबीआई कार्ड्स में। स्टॉप लॉस अब भी आपको यहाँ से लगाना चाहिए अराउंड 1010 के आसपास, जो इस बेस का इस पर्टिकुलर स्विंग का बेस लेवल है। तो खरीदारी करनी चाहिए एसबीआई कार्ड्स में 1123 के लक्ष्य के लिए। तो ये है आपके लिए एसबीआई कार्ड्स खरीदारी करने की राय। क्या बात है, एसबीआई कार्ड्स पर दोनों की तरफ से कॉल आता हुआ दिख रहा है। जय भी बुलिश है और साथ ही साथ सचिन जी भी बुलिश है, और टारगेट सचिन जी की तरफ से आते दिख रहे हैं 1130 के, जय के टारगेट्स 1140 के आसपास के। तो ये स्टॉक लगता है कैश मार्केट के स्टॉक में दोनों का एक साथ कॉल आना लगता है। एसबीआई कार्ड्स आज कुछ न कुछ बड़ा कमाल दिखाने की तैयारी में, बड़ा कमाल दिखाने की तैयारी में। 2 रेलवे स्टॉक्स जिनको लेकर एक बड़ी खबर आपकी स्क्रीन पर फ्लैश होती हुई दिख रही है। बिग ब्रेकिंग आपके सामने इस वक्त
इरकॉन और IRCTC। ये तो मेरा फेवरेट स्टॉक हमेशा से रहा है और इस स्टॉक के लिए और साथ ही इरकॉन के लिए एक बेहतरीन खबर आती हुई दिख रही है और वो खबर ये है, रेलवे एसेट मोनेटाइजेशन का रोड मैप तैयार हो चुका है और इस रोड मैप में काफ़ी कुछ एक्शन है, काफ़ी कुछ अच्छी बातें हैं इन दो कंपनियों के लिए। इसमें रेलवे के 265 शेयर्स के लिए मोनेटाइजेशन किया जाएगा, ये खबर आती हुई दिख रही है इस वक्त आपके लिए। 400 रेलवे स्टेशन का मोनेटाइजेशन होगा, कुल मिलाकर 1.5 लाख करोड़ का मोनेटाइजेशन की तैयारी है और सबसे ज़्यादा फायदा होगा आपको IRCTC और साथ ही साथ इरकॉन को। 90 पैसेंजर ट्रेन और 1400 किलोमीटर रेलवे ट्रैक का मोनेटाइजेशन भी, यानी कि ढेर सारा प्लान आपके सामने आता हुआ दिख रहा है इन दोनों शेयरों को लेकर और शेयर दोनों ही कमाल करते हुए दिख रहे हैं। आइए उन पर राय लें, उन पर पूछे। उससे पहले जल्दी से एक बार चेतन भूटानी हमारे साथ कार्यक्रम में हो चुके हैं शामिल पूरी डिटेल्स के साथ। चेतन बताइए क्या है पूरी डिटेल। सर, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने जब रोड मैप डिक्लेयर किया था नेशनल मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम का, तो हमने एक्सक्लूसिवली वो रोड मैप को एक्सेस किया और हम उसमें से डिटेल्स एक्सक्लूसिव निकाल के लाए हैं कि जो रेलवेज है उसमें 1,52,000 करोड़ का मॉडर्नाइजेशन प्लान इनफैक्ट प्लान किया गया है। 400 रेलवे स्टेशन का मॉडर्नाइजेशन प्लान है। इस साल जो है 44 रेलवे स्टेशन मॉडर्नाइज किए जाएंगे और अगले 3 सालों तक 120 मतलब 360 रेलवे स्टेशन अगले 3 सालों में मॉडर्नाइज किए जाएंगे। अभी अच्छी खबर इरकॉन के लिए क्यों है सर? क्योंकि जिस तरीके से मॉडर्नाइजेशन किया जाएगा वो किया जाएगा इंडियन रेलवे स्टेशन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन द्वारा। अब ये जो जेवी है ये RLDA और इरकॉन की जेवी है IRSDC, जिसका मतलब ये रेलवे लैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी और इंडियन रेलवे स्टेशन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, इन दोनों की जेवी की वजह से ये IRSDC अपना मॉडर्नाइजेशन करेगी, तो जिसके चलते काफी अच्छी खबर इरकॉन के लिए भी रहने वाली है। इनफैक्ट IRCTC के लिए खबर इसलिए अच्छी क्योंकि 90 पैसेंजर ट्रेन का मॉडर्नाइजेशन प्लान है और 1400 किलोमीटर रेलवे ट्रैक्स का भी मॉडर्नाइजेशन प्लान है। तो डेफिनेटली अगर मॉडर्नाइजेशन प्लान करेंगे तो उसकी जो डायरेक्ट कंपनी डील करती है इन सब चीजों के बारे में वो ऑफकोर्स IRCTC है, जो बहुत फायदे में रहने वाली है। और जो रेलवे के शेड गुड्स होते हैं जिसमें काफी मेंटेनेंस अपॉर्चुनिटी एंड ट्रैक्शन सर्विसेज करी जाती है, उसमें 265 गुड्स शेड का मॉडर्नाइजेशन प्लान है। तो आने वाले समय में 3 से 4 सालों में रेलवेज में 1,52,000 करोड़ रुपए का एक मॉडर्नाइजेशन प्लान तैयार है, जिसका रोड मैप आज जी बिजनेस पे हमने एक्सक्लूसिवली ब्रेक किया है। तो ये बड़ा एक्शन होता हुआ दिख रहा है रेलवे स्टॉक्स को लेकर और दो रेलवे कंपनियों के लिए इस एसेट मोनेटाइजेशन से शानदार फायदा होता दिख रहा है। IRCTC ये है वो स्टॉक जो कमाल करता हुआ दिख रहा है। 3% की मजबूती के साथ इस स्टॉक में आपको दिखेगी तेजी। IRCTC, कुणाल जी देखिए 400 दीजिए अपनी राय और बंसल जी आप इरकॉन के चार्ट्स पर रखें अपनी नजर। मैं आपके पास आ रहा हूं, तो बंसल जी पहले IRCTC, कुणाल जी माफ कीजिएगा। अनिल जी गजब का चार्ट है और लगातार आपका कन्विक्शन इस पर रहा है, हमारा भी कन्विक्शन IRCTC पर रहा है। कई बार मैंने और राकेश जी ने लगातार इस पर खरीदारी की कवायद की है। चार्ट बहुत शानदार है, जिनके पास है बिल्कुल बने रहें। अभी ये कंजेशन 2700 पर अगला दिखाई पड़ता है, तो अभी यहां से करीबन 80-90 रुपए की तेजी की गुंजाइश पूरी चार्ट पर दिखती है। 2700 इसके लिए एक मेजर लेवल है, वो लेवल पार हुआ तो स्टॉक 3000 के लेवल्स को भी छू सकता है। तो बड़ा दमदार चार्ट है, जिनके पास है होल्ड करें और यहां पर रिस्क रिवॉर्ड बहुत फेवरेबल है। इन स्तरों पर आप खरीद रहे हैं तो एक 2570 का स्टॉप लॉस रखें, खरीदारी करें, 2700 का पहला टारगेट हो। दम है कुणाल जी की आवाज में, दम है खबर में और इस खबर के दम पर IRCTC 2650 के आसपास पहुंचता हुआ दमदार चार्ट से स्टॉक किसी भी लेवल से नीचे नहीं आता। 1600 से 1800 रुपए में लॉकडाउन के वक्त हमने काफी स्ट्रांगली इसे रिकमेंड किया था। ये स्टॉक 2500 के आसपास तक जाने की तैयारी रखता है, उम्मीद से पहले भागा है और अब 2500 के टारगेट हमने रिवाइज करके 2800 और 3000 के टारगेट किए हैं। बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी का स्टॉक दिया, आपके पोर्टफोलियो में जरूर होना चाहिए। IRCTC कमाल करता हुआ दिख रहा है। दूसरा स्टॉक जो बंसल जी बताएंगे आपको, इरकॉन। बंसल जी छोटी प्राइस का 43 रुपए वाला इरकॉन, क्या यहां पर भी तेजी के संकेत हैं? बिल्कुल अनिल जी, तेजी के संकेत है। स्टॉक काफी समय से चला नहीं है और हर बार एक रिबाउंड देखने को मिलता है। इसका एक 40 रुपीज पर एक अच्छा सपोर्ट है और इस बार तो 40 रुपीज पर एक डबल बॉटम लग रहा है, तो 40 रुपीज के स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी की राय है। पहला टारगेट 48-49 का जोन बैठता है और दूसरा टारगेट जोन 51 से लेकर 52 का बैठता है। अच्छा कैंडिडेट है खरीदारी का इरकॉन।
खरीदारी के लिए बेहतरीन कैंडिडेट है। तो आज के पूरे माहौल में रेलवे स्टॉक्स में एक्शन भरपूर है। यहां पर तेजी के सारे संकेत आते हुए दिख भी रहे हैं और जबरदस्त तेजी बनती हुई दिख रही है। इन सारे शेयरों में गजब का एक्शन आपको नजर आएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। और ये एक्शन कई सारे और स्टॉक्स में भी बढ़ता हुआ दिख रहा है। उन्हीं में से एक है जिस पर राय ली जाए और वो है HPCL। किरण जी, HPCL के चार्ट देखिए, 3% मजबूत है, डे हाई के आसपास 257 पर ट्रेड करता हुआ। क्या है आपकी राय? HPCL ने बहुत अच्छी करेक्टिव रैली दी है पिछले 2-2.5 महीने में, लगभग 285 से लेके 245, और उसके बाद आज पहली बार एक मीनिंगफुल काइंड ऑफ अपमूव देखने को मिल रहा है। तो ये फर्स्ट साइंस है। और अगर हम ऑप्शन चेन डेटा देखते हैं तो थोड़ा सा इधर और संकेत पॉजिटिव होते नजर आ रहे हैं। मेरा मानना है कि अभी किसी के लॉन्ग पोजीशंस है तो 252 का स्टॉप लॉस लगाए, होल्ड करे। ये पोजिशनली मुझे लगता है 270 के आसपास जाने की प्रोबेबिलिटी है। ये है आपके लिए HPCL पर आए। आगे बढ़ते हैं। सेठी साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल होने के लिए हैं तैयार, लेकिन उससे पहले आशु सर से लेनी है हमें कैश कॉल से, और आशु सर के लिए बिगुल सिंह के सुल्तान आशु मदान। बताएं आशु सर, आप अपने फ्रेश कॉल्स बताएं, क्या करना चाहिए सर? हाँ अनिल जी, वैसे तो मैं मिड कैप बहुत सिलेक्टिव रहता हूँ और बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करता हूँ, क्योंकि अनलेस उनमें बहुत ही ग्रेट चीज़ नज़र आए, क्योंकि फंसने के चांसेस होते हैं। बट अनिल जी, इस करेक्शन के अंदर जो एक स्टॉक मेरा पिछले दिनों का फेवरेट रहा और मुझे लगता है उसका टाइम आ गया है, मतलब उसको आप नहीं रोक नहीं सकते, वो है अनिल जी डेल्टा कॉर्प। अनिल जी, डेल्टा कॉर्प में करेक्शन आ चुकी है। गोवा ऑफिशियली तो नहीं वैसे, लेकिन गोवा खुल चुका है। अनिल जी, गोवा के सारे रेस्टोरेंट्स पूरी तरह से भरने लग गए हैं, सिर्फ क्योंकि ये एक ऑथोराइज कसिनो है, इनको गवर्नमेंट की अप्रूवल चाहिए खुलने के लिए। वो किसी भी वक्त होगा। और अनिल जी, जो हमने लॉकडाउन खुलने के बाद हिल स्टेशन में, बीचेस में, सब जगह देखा है अनिल जी, बहुत बड़ा मतलब एक मूव आएगा डेल्टा कॉर्प की तरफ। और अनिल जी, सिर्फ एक क्वार्टर चाहिए टू मेक अप ऑल द लॉसेज, या जो भी इनका जो लॉकडाउन का इफेक्ट था। सो अनिल जी, मैं इस स्टॉक में बहुत ज्यादा पॉजिटिव हूं। पहले भी रेकमेंड किया है 180 पे, वहां से 200 गया था, उसके बाद नीचे आया अनिल जी, फिर 170, 72, 73 पे मिल रहा है। मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा रेट है, कि मतलब एक स्टॉक है जो मुझे बहुत पसंद है, जिसको एवरेज आउट किया जा सकता है। एंड इट इज ओनली ए मैटर ऑफ टाइम अनिल जी, जब आप देखेंगे कि इसमें एक बहुत अच्छा मूव अपने को मिलेगा। सो दिस इज वन कैश स्टॉक जो मैं दोबारा रिट्रेड कर रहा हूं कि अगर किसी ने नहीं लिया तो ले सकता है, लिया हुआ है तो रोकना चाहिए। आप तो रोकने के लिए कह ही रहे हैं, और अगर एवरेज भी करना है तो कर सकते हैं। तो अनिल जी, मेरा पहला स्टॉक तो डेल्टा है। दूसरा स्टॉक अनिल जी, हमने परसों बात की थी, मैं इस पे थोड़ा आपसे अपना इनपुट शेयर करना चाहता हूं। आपसे परसों बात हुई थी तो मैंने इस पे थोड़ी रिसर्च की। वो अनिल जी मीडियम टर्म के लिए स्लो मूवर रहेगा अनिल जी, फिर बोल रहा हूं पहले ही, क्योंकि लोगों को एक्साइटमेंट हो जाती है स्टॉक में और कैश का हो। स्लो मूवर रहेगा मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए अनिल जी, वो है जोमैटो। अनिल जी, हमने जो आपने परसों ही मुझे इनपुट दी और वो बहुत इंपॉर्टेंट थी, जिसमें हमने बात की अनिल जी, जो टेक्निकल सेलिंग थी, जो एंकर इन्वेस्टमेंट की, वो 125-26 के भाव पे एब्जॉर्ब होती दिख रही है। अनिल जी, अगर आप 4-5 महीने पहले भी देखें तो इनके जो डिलीवरी पार्टनर्स थे अनिल जी, वो 2 लाख से कम थे, 2 लाख से कम थे, 1,70,80 हजार। और अनिल जी, आज जब हम बात कर रहे हैं तो पिछले 4-5 महीनों में 3 लाख से ज्यादा डिलीवरी पार्टनर हो चुके हैं। अनिल जी, मोर देन 1 लाख डिलीवरी पार्टनर्स हैव बीन एडेड इन द लास्ट 4 मंथ्स। अनिल जी, मिलेनियल्स की हैबिट, और अनिल जी जो स्केल और पेनिट्रेशन है, जो स्केल और इसका थीम है स्केल एंड पेनिट्रेशन, जो ये अचीव कर रहा है अनिल जी, इस वक्त वैल्यूएशन उस पे मिलेगी। और अनिल जी, आने वाले टाइम में भी IPL शुरू होना है, T20 वर्ल्ड कप आना है, तो ऐसे जो बड़े बड़े इवेंट्स आते हैं अनिल जी, उसमें तो ये मतलब ये जनरली देखा गया कि ये डिलीवरी बिजनेस और ज्यादा, तो जो इनको टेलविंड्स मिलेंगी कुछ इवेंट से, और आने वाले टाइम में जो विंटर्स में भी सब ये इवेंट सारे आते हैं, तो वो बहुत बेनिफिशियल होगी। तो मुझे अगले 1-2 क्वार्टर में लगता है कि जो इनके पिछले लॉसेज आए हैं उनमें हमें काफी चेंज नजर आएगा। तो मैं अनिल जी मीडियम टर्म से, इसमें कोई भागने वाली बात नहीं है, पेशेंस रखनी पड़ेगी। हमारा पॉजिटिव हुआ तो मैंने कहा मैं आपसे जरूर शेयर कर लूं, क्योंकि इस वक्त पॉपुलर स्टॉक है ये। ओके, तो ये है आपके लिए डेल्टा कॉर्प और जोमेटो में खरीदारी करने की राय आशीष सर की तरफ से आती हुई दिख रही है। आइए बढ़े आगे, उससे पहले 3i इन्फोटेक, जिसका जिक्र हमने किया था कि शुक्रवार से इसकी ट्रेडिंग बंद होगी, लेकिन एक चीज मैं क्लेरिफाई करना चाहता हूं कि इसकी ट्रेडिंग
टेम्परेरीली बंद होगी, परमानेंट डीलिस्टिंग नहीं होने जा रही। इसमें कैपिटल रिडक्शन हो रहा है और वो कैपिटल रिडक्शन की पूरी स्कीम हम आपके सामने लाएंगे। किस तरह से रिडक्शन होगा वो मैं बता दूं। 90% कैपिटल रिडक्शन होगा। जो 10 रुपए की पेडअप वाला शेयर है वो 1 रुपए की पेडअप वाला शेयर रह जाएगा और इसको बाद में फिर से इसको फेस वैल्यू चेंज करके इसमें कुल मिलाकर यह है कि जब रिस्ट्रक्चरिंग पूरी कंप्लीट होगी और रिस्ट्रक्चरिंग के बाद जब ये स्टॉक आपका लिस्ट होगा, समझिए आपके पास अभी 100 शेयर हैं तो वो 100 शेयर घटकर रह जाएंगे 10 शेयर, यानी कि 90% आपकी इक्विटी कम हो जाएगी, रह जाएंगे आपके पास 10 शेयर। लेकिन उन 10 शेयरों का दाम अभी जो 7 रुपए है वो बढ़कर हो जाएगा 70 रुपए। तो इफेक्टिवली किसी तरह का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप देखें नंबर ऑफ शेयर्स घटेंगे, दाम उस हिसाब से बढ़ेंगे। ये बेसिक स्कीम है। और एक और चीज क्लेरिफाई कर दूं कि ये परमानेंटली डीलिस्ट नहीं होने जा रहा है। जिस तरह से DHFL या दूसरे स्टॉक डीलिस्ट हो गए उसके बाद ट्रेडिंग बंद हो गई, यहाँ पर कम से कम ट्रेडिंग वापस आने शुरू होगी। कब होगी ये नहीं पता, लेकिन होगी जरूर। तो इसलिए और काफी कुछ इसके बारे में चर्चाएं चल रही है। हम विस्तार से आपके सामने पूरी डिटेल्स भी रखेंगे 3i इन्फोटेक को लेकर कि क्या कुछ इस कंपनी में बदलाव हो रहा है। लेकिन आइए तब तक बढ़ते हैं आगे और वक्त है सेठी साहब से मुलाकात करने का। सदाबहार सेठी साहब की शॉर्ट टर्म पिक्स। स्वागत है सेठी साहब, आपका क्या इरादा है आज कैश फ्यूचर्स मिक्स? गुड आफ्टरनून अनिल जी, गुड आफ्टरनून दीपांशु। अनिल जी एज यूजुअल 2 स्टॉक कैश मार्केट के, दोनों में खरीदारी करनी है। बताएं सर, शुरुआत कीजिए पहले स्टॉक के साथ। अनिल जी, जो आपका पहला स्टॉक है वो अभी थोड़ी देर पहले अपने चैनल पे एक एक्सक्लूसिव खबरें चल रही थी कि रेलवे के एसेट मोनेटाइजेशन का विचार हो रहा है, जिसके द्वारा रेलवे अराउंड 1.5 लाख करोड़ रुपए जुटा सकती है। तो उसी सेक्टर को कैटर करने वाली एक सॉलिड कंपनी हिंद रेक्टिफायर, जो कि HIRECT इस नाम से ट्रेड होता है एक्सचेंजेस में, NSE में, 165 रुपए का अभी प्राइस है इस स्टॉक का। ये कंपनी एक लीडिंग मैन्युफैक्चरर है पावर सेमीकंडक्टर, पावर इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स और रेलवे ट्रैक्शन इक्विपमेंट्स। कंपनी रेलवे के लिए बहुत कारोबार करती है। इनका एक कोलैबोरेशन भी है, यूके की कंपनी है वेस्टिंगहाउस ब्रेक एंड सिग्नल, उसके साथ टेक्निकल कोलैबोरेशन है। फिर सॉलिड फंडामेंटल्स है। नॉर्मल ईयर में रिटर्न ऑन इक्विटी अराउंड 20%, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 29%, डेट भी एक मैनेजेबल 0.88 का डेट इक्विटी रेशियो है। पिछले 3 साल का पैट का कैगर है 37%। और इस कंपनी में इस क्वार्टर, जून क्वार्टर में अभी जो शेयर होल्डिंग पैटर्न आया है उसमें FIIs ने, जो पहले कोई हिस्सेदारी नहीं थी 0%, वहां से बढ़ के वो 2.8% हिस्सेदारी अभी FIIs की हो गई। तो ऑल इन ऑल एक बहुत ही अच्छा स्टॉक है और अपने हाई से भी काफी अच्छा खासा करेक्ट हो चुका है। मुझे लगता है इन लेवल्स पे 165 के आसपास इसको खरीदना चाहिए। शॉर्ट टर्म में मेरे इसमें 185 का टारगेट है और 155 का स्टॉप लॉस रखना है। ओके, सारे रेलवे स्टॉक्स धीरे धीरे करके बढ़िया एक्शन में आते हुए दिख रहे हैं। रेलवे से जुड़े हुए सारे स्टॉक्स, रेलवे में एसेट मोनेटाइजेशन का काम जो शुरू होता दिख रहा है। अभी अभी आपने एक बड़ी और एक्सक्लूसिव खबर देखी भी, उसके बाद इरकॉन और IRCTC दोनों ही स्टॉक जबरदस्त एक्शन में आते हुए दिख रहे हैं। वैसा ही बढ़िया एक्शन आप उम्मीद कर सकते हैं रेलवे से जुड़े हुए दूसरे स्टॉक्स में भी। हिंद रेक्टिफायर्स, जैसा कि सेठी साहब ने बताया, बेहतरीन फंडामेंटल वाली कंपनी, यहां पर एक्शन रहेगा भरपूर। करें खरीदारी, 185 के टारगेट आते हुए जल्दी आपको नजर आएंगे। सेठी साहब बताएं दूसरा स्टॉक आज के लिए। दूसरा स्टॉक भी अनिल जी आज का जो है वो सेक्टर फोकस में है, शुगर स्पेस, जिसकी अभी काफी खबरों में भी चर्चा है शुगर स्पेस की। वहां से मैंने आज पिक किया है द्वारिकेश शुगर को, जो कि अभी 71 रुपए 70 पैसे के लेवल पे कैश मार्केट में ट्रेड होता है। एक सॉलिड कंपनी और बाकी इस सेक्टर के सभी स्टॉक्स में आज एक अच्छी तेजी है। थोड़ी देर पहले हमने पीयूष गोयल जी को सुना, जिन्होंने बहुत ही एम्फेटिकली कहा कि एथेनॉल की जो ब्लेंडिंग स्टोरी है, जो एथेनॉल आज पेट्रोल में 7.5-8% तक ही ब्लेंड होता है, वो आने वाले 2-3 साल में उनका लक्ष्य है 20% करने का। तो ये शुगर कंपनी जो कि एथेनॉल बनाती है, उनके लिए एक बहुत ही एक ड्रीम टाइम होगा। अगर इस तरह का इतनी जल्दी हो जाता है तो डेफिनेटली एक बड़ा पॉजिटिव होगा। एथेनॉल की स्टोरी वैसे भी चल रही है शुगर स्टॉक्स में, हमने देखा ही है, वो चली रहा है। और दूसरा, क्रूड के प्राइसेस भी हाल ही में बहुत ही जबरदस्त तेजी में हुए हैं और जब क्रूड के प्राइसेस बढ़ते हैं तो एथेनॉल की डिमांड बढ़ती है, तब ब्लेंडिंग की आवश्यकता ज्यादा हो जाती है। तो उस तरह से एक प्ले हो गया एथेनॉल का। दूसरा, हम फेस्टिव सीजन की ओर बढ़ रहे हैं। शुगर के प्राइसेस ऑलरेडी इंटरनेशनल मार्केट्स में रो शुगर के प्राइसेस आसमान छू रहे हैं, डोमेस्टिक मार्केट में भी शुगर के प्राइसेस बढ़े हैं। फिर फेस्टिवल सीजन यानी कि आने वाले दिनों में गणपति, फिर दुर्गा पूजा, दशहरा, दिवाली, क्रिसमस
और न्यू ईयर, जिसके दौरान मिठाइयाँ और केक्स इनकी डिमांड बढ़ती है, तो शुगर की डिमांड बढ़ती है, प्राइजेस भी काफ़ी बढ़ जाते हैं। तो उसका एक फायदा पूरे शुगर सेक्टर को होना है। और जहाँ तक द्वारिका शुगर का सवाल है, एक फंडामेंटली अच्छी कंपनी है। जून क्वार्टर के नतीजे भी दमदार थे। 27 करोड़ का पैट आया, जो कि पिछले साल 18 करोड़ का पैट था। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है 22%, डेट इक्विटी रेशियो भी 0.96 का है, और वो रेगुलर इंटरवल पे कंपनी ने कम किया है। तो ऑल इन ऑल एक अच्छी कंपनी है फ्रॉम विद इन द शुगर स्पेस। इस स्टॉक में यहाँ पे खरीदारी करने की सलाह है, और मेरा इसमें शॉर्ट टर्म का टारगेट है 85 रुपए का, स्टॉप लॉस रखना है 65 रुपए। ओके, तो 85 का टारगेट, 65 का स्टॉप लॉस, खरीदारी करें। द्वारिका शुगर और हिंद रेक्टिफायर्स, ये दूसरा काउंटर है। 185 का टारगेट, 155 का स्टॉप लॉस। बहुत बहुत शुक्रिया सेठी साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए और दो बेहतरीन कैश कॉल्स देने के लिए। आइए अब चलते हैं अनिल जी के पास इस समय की मार्केट स्ट्रैटेजी के लिए। सर, ग्लोबल मूड माहौल ठीक ठाक है। अगर आप देखें सुबह से डाउ फ्यूचर्स हम देख रहे हैं सुस्त रहा है और अभी भी एकदम सपाट ट्रेड कर रहा है, कोई मूव नहीं आ रही है। नैस्डैक फ्यूचर्स हल्की सी बढ़त है, वैसे पिछले 2 दिनों से नैस्डैक और S&P दोनों पर नए रिकॉर्ड्स बने हैं। यूरोप में भी ठीक ठाक कारोबार हो रहा है, थोड़ी मिली जुली चालें बट बहुत ही सीमित दायरे में वहां पर भी आपको ट्रेड होते हुए दिखा है। तेल में रिबाउंड जो आया था 2 दिनों का, आज थोड़ी सुस्ती दिख रही है, करीब आधे से 1% नीचे। सोने में भी आप आधे % की कमजोरी देख रहे हैं और एशिया की भी मिली जुली चाल रही। सपाट क्लोजिंग हांगकांग और जापान के लिए, चीन में आपने हल्की सी बढ़त देखी है। तो ओवरऑल ग्लोबल मूड ठीक ठाक है सर, बहुत ही सीमित दायरे में सपाट कारोबार होते हुए दिख रहा है। क्या करना चाहिए? दीप, देखिए मिला जुला सा कारोबार कल आपके सामने है। वायदा कारोबार की मंथली एक्सपायरी भी, तो थोड़े से वोलेटाइल ट्रेड इतने तो बनते हैं, होना भी चाहिए। अब आइए पहले निफ्टी की बात करें। 16,600 के नीचे क्लोज होने की संभावना कम है आज। निफ्टी में जिस तरह का माहौल है इस वक्त, जिस तरह का एक्शन है, वो मैं आपको बता सकता हूं कि बहुत नीचे आप बंद नहीं होंगे, ये ध्यान में रखिए। कल हमने 16,625 के आसपास की क्लोजिंग देखी थी, आज भी 16,600-625 की रेंज में, इससे नीचे नहीं बंद होने चाहिए, ये डेटा दिखा रहे हैं। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? 16,600 पर 62 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है पुट में, और 16,600 पर 33 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है कॉल्स में। तो 16,600 के आसपास आते ही आपको निफ्टी में थोड़ी शॉर्ट कवरिंग और थोड़ा खरीदारी का सपोर्ट मिलता हुआ दिखेगा। इस पर आपको फोकस करना है। तो आपके लिए 16,590, 16,625, ये 35 पॉइंट की रेंज बचे हुए 1 घंटे के लिए सपोर्ट के तौर पर काम करेगी। अब आइए ऊपर कितना जा सकते हैं। ऊपर 16,700 के ऊपर जाने की संभावना कम है। 68 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है, हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है, उसमें से 21 लाख शेयर आज ही जुड़े हैं। तो ये सपोर्ट आपको ये कॉल डेटा आपको ऊपर नहीं जाने देंगे। तो ज्यादा वक्त वही 16,600, 16,700 की रेंज में निफ्टी बिताकर आज यहीं छोड़ देगा। एक बार जल्दी से मुझे एक बार फिर से डाउ फ्यूचर्स और नैस्डैक फ्यूचर्स दिखा दें, मैं मिस कर गया एक बार। बाकी यूरोप के बाजार तो बड़े सुस्त हैं, वहां पर तो ज्यादा कोई खास बदलाव है नहीं। डाउ फ्यूचर्स और एक बार नैस्डैक फ्यूचर में एक बार देख लेना चाहता हूँ, ये भी सुस्त है, कहीं कोई खास दिक्कत ऐसा न तेजी और न मंदी के संकेत हैं। वेट एंड वॉच वाला मामला वहां पर है। तो जो पोजीशन है उसे आप होल्ड रखें, फ्रेश पोजीशन बनाने का कोई खास सिग्नल आ नहीं रहा। ट्रेंड तेजी का है निफ्टी में, कहीं कोई डरने घबराने की जरूरत नहीं है। ऐसे में अगर गिरावट आती है, नीचे की तरफ आता है, तो आपको खरीदारी का मौका ढूंढना चाहिए। खरीदारी का बढ़िया लेवल 16,625, 630 आज का लो, 16,600, 16,565, ये 3 लेवल है। या नीचे नीचे अगर आता है निफ्टी तो वहां पे धीरे धीरे टुकड़ों में खरीदारी करनी चाहिए। ऊपर 16,690, 16,700 के आसपास प्रॉफिट बुकिंग। सिंपल, ये हो गया आपकी बात निफ्टी। अब आइए बैंक निफ्टी। 35,500 बैंक निफ्टी पर आखिरी उम्मीद है। 35,500, 35,600 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रेंज है जहां पर बैंक निफ्टी है, और वैसे देखा जाए तो इसके नीचे जाना नहीं चाहिए। इनफैक्ट 35,400 से 35,600 की रेंज आप मान सकते हैं, लेकिन 35,500 पर 28 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है, पुट में हाईएस्ट है। 35,600 पर 18 लाख शेयरों का है, तो ये 100 पॉइंट की रेंज सपोर्ट का काम करेगी। और अगर इस डेटा के लिहाज से चलना है तो यहां पर लॉन्ग पोजीशन बनी रह सकती है, और आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए 35,400 का। अगर 35,400 के नीचे अगर बैंक निफ्टी ट्रेड करता हुआ दिखे तो आपको लॉन्ग पोजीशन कम कर लेनी चाहिए, अदरवाइज 35,500, 35,600 में सपोर्ट ले लेगा। अब ऊपर कितना जा सकते हैं? 35,700, 35,800 पर अच्छी खासी कॉल राइटिंग हुई है 22 लाख शेयरों की, तो वहां पर हल्की आपके लिए रुकावट है। तो 35,800 के ऊपर निकलने पर आपको बढ़िया असली ताकत दिखेगी, और 35,400 के नीचे जाने पर और कमजोरी दिखेगी। ये बैंक निफ्टी के डेटा है, मिले जुले डेटा है। तो 35,500, 35,400 की रेंज में खरीदिए,
35,700 35,800 की रेंज में प्रॉफिट बुक कीजिए। ये आपके लिए बैंक निफ्टी के डेटा बनते हुए दिख रहे हैं। लॉन्ग करना है निफ्टी करिए, शॉर्ट करना है बैंक निफ्टी करिए। लॉन्ग करना है नीचे में निफ्टी आने दीजिए, वहां पर लॉन्ग करिए। शॉर्ट करना है बैंक निफ्टी में थोड़ा उछाल आने दीजिए, वहां पर बेचिए। ये ट्रेड परफेक्ट रहेगा। और दीप, कल भी हम यही बात कर रहे थे कि देखिए 35,800 को पार करके ऊपर बंद नहीं हो पाया। आज तो सुबह से 35,800 के ऊपर टिका ही नहीं। 35,910 का हाई जरूर है, लेकिन बैंक निफ्टी ने 35,800 के ऊपर ज्यादा वक्त बिताया नहीं। यानी कि वही ऊपर 35,800 36,000 की रेंज में सप्लाई है बैंक निफ्टी में। एक दिन आउट परफॉर्मेंस की वही वाली बात है। एक दिन उम्मीद जगाता है और फिर वापस बैंक निफ्टी 1-2 दिन बाद वापस ठंडा हो जाता है। तो अभी तक बैंक निफ्टी में मजबूती का ट्रेंड बना नहीं है और निफ्टी में अभी तक कमजोरी का ट्रेंड बना नहीं है, और उसी हिसाब से आपको अपनी ट्रेडिंग की पोजिशनिंग कर लेनी चाहिए। जी दीप। बिल्कुल सर, तो ये है आपके लिए क्लियर फोकस। बैंक निफ्टी और निफ्टी के बीच निफ्टी में ज़्यादा स्ट्रेंथ है, बैंक निफ्टी में थोड़ी वीकनेस है, और वो आपको अभी का ट्रेंड भी दिखेगा। आज ऑलमोस्ट नया रिकॉर्ड बनते बनते निफ्टी में दिखा, 2 पॉइंट्स दूर था। अब थोड़ी निफ्टी में भी ऊपरी स्तरों से गिरावट है, पर बैंक निफ्टी देखिए 200 पॉइंट्स नीचे ट्रेड कर रहा है इस समय। आइए कुछ कॉल्स हैं इस बाजार में हमारे एक्सपर्ट्स की तरफ से। पहले चलते हैं सचिन जी के पास, BTSTT। बताएं सचिन जी। दीपांशु, यहाँ पर खरीदारी करनी है रामको सीमेंट्स के सितंबर फ्यूचर में, जो लगभग अराउंड 975 के आसपास फिलहाल ट्रेड कर रहा है। जिस तरीके से ये स्ट्रक्चर रहा है, एक लो टॉप लो बॉटम सीक्वेंस में रहा था पूरे एक्सपायरी में, बट पिछले 2 दिनों से यहाँ पर काफ़ी कवरिंग हो चुकी है। तो मुझे लग रहा है काफ़ी अच्छा कैंडिडेट है एक शॉर्ट कवरिंग या फिर एक पुल बैक मूव प्ले आउट करने के लिए। स्टॉप लॉस आपको लगाना है अराउंड 964 के आसपास। पहला टारगेट होगा 990 का एंड फाइनल टारगेट होगा अराउंड 1020 का। खरीदारी करनी है रामको सीमेंट के सितंबर के फ्यूचर्स में। ओके, रामको सीमेंट फ्यूचर्स खरीदे सितंबर कॉन्ट्रैक्ट के, और लंबे समय बाद सीमेंट स्टॉक फोकस में आ रहा है। और रामको सीमेंट यूजुअली ट्रेडर रेडार पर कम रहता है, बट अब मूवमेंट के लिए है तैयार। आइए देखते हैं जय ठक्कर को इस समय क्या पसंद आ रहा है। चलते हैं जय के पास, बिल्कुल जय का जैकपॉट। बताएं जय। जी दीपांशु, मुझे एस्कॉर्ट्स काफी पसंद आ रहा है लेवल्स पर, इसीलिए इसका एक कॉल ऑप्शन मैं रेकमेंड कर रहा हूँ। 1340 के स्ट्राइक का कॉल खरीदना है एस्कॉर्ट्स का, जो करीब अभी आपको मिलेगा 60 रुपए 10 पैसे पे। इसको खरीद कर चलना है दीपांशु। एंड मुझे ऐसा लग रहा है रिस्क रिवॉर्ड पॉइंट ऑफ व्यू भी काफी अच्छा बन रहा है। इसका जो फर्स्ट टारगेट बनेगा, सिंस सितंबर सीरीज तो अभी स्टार्ट होने को ही है, तो इसके टारगेट्स थोड़े मैं फर्स्ट टारगेट एग्रेसिव टारगेट्स देता हूँ। 81 का फर्स्ट टारगेट रहेगा, 94 का सेकंड टारगेट रहेगा। 81 94 ये 2 टारगेट्स के लिए एस्कॉर्ट्स का 1340 के स्ट्राइक का आप कॉल ऑप्शन खरीदे। सितंबर सीरीज का है ये दीप। एंड यहाँ पे नीचे हम आपको स्टॉप लॉस प्लेस करना होगा 47 पर। लास्ट 3 दिनों में जो हिसाब से एक मूव आया ये स्टॉक में, टेक्निकली अगर मैं देखूं तो बहुत ही अच्छा गोल्डन क्रॉसओवर फिर से ये स्टॉक में देखने मिला है। एंड डेरिवेटिव्स डेटा में भी हमें क्लियरली एक लॉन्ग पोजीशंस बनती हुई नजर आ रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये स्टॉक अभी 1380 इमीडिएट बेसिस पर जाना चाहिए, और सितंबर सीरीज में काफी चांस है दीप की 1400 के पार निकल के 1440-60 तक के भी लेवल्स दिखा सकता है। जो हिसाब से कंसोलिडेशन खत्म हुआ है, एक कंसोलिडेटिंग रेंज का एक बेस पैटर्न का ब्रेकआउट, लॉन्ग पोजीशंस डेफिनेटली बिल्डअप हुई है यहाँ पे। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि एक अच्छा मूव आपको सितंबर सीरीज में देखने मिलेगा, और कहीं ना कहीं ऑटो रिलेटेड जो स्टॉक्स है वो सभी में एक अच्छा मूव देखने मिलेगा, और एक बाउंस बैक मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, बिकॉज एनीथिंग रिलेटेड टू दिस सेक्टर यहाँ पे हमें काफी टाइम से एक सेलिंग देखने मिल रही है। सो यहाँ पे भी एक बाउंस बैक की उम्मीद है। बाउंस बैक की उम्मीद एस्कॉर्ट्स में आप कर सकते हैं। एस्कॉर्ट्स पिछले 2 दिनों से लगातार हमारे एक्सपर्ट्स की तरफ से रिकमेंडेशन के तौर पर आता हुआ कुणाल जी, राकेश जी, वागले साहब और बाकी सारे एक्सपर्ट्स को, सचिन जी को भी पसंद रहा है। इस स्टॉक में भरपूर एक्शन बनता हुआ दिख रहा है। लेकिन बढ़ते हैं आगे, और वक्त है आपके लिए एक बेहतरीन कॉल लेने का। आशु सर तैयार है अपनी एक और बेहतरीन पिक के साथ। सिंह के सुल्तान आशु मैदान। बताएं आशु सर। अनिल जी, थोड़ा सा रिस्क रिवॉर्ड लेट हो गया है। अभी जब मैंने आपको मैसेज किया ऑब्वियसली तब वो चल रहा था। अनिल जी, अभी हमने अपने क्लाइंट से शेयर किया, जो मैंने अनिल जी स्प्रेड बनाया था
वो भी इसलिए था कि अपने को 50 से 100 पॉइंट की मूवमेंट लगती थी। और अभी अभी हमने अनिल जी अपने क्लाइंट से शेयर किया 16,645 पे निफ्टी की शॉर्ट कॉल दी है 16,645 पे। तो अनिल जी थोड़ी सी रिकवरी हो 40 से 45 में आए तो निफ्टी शॉर्ट करनी है, 50 रुपए ऊपर का स्टॉप लॉस लगाना है। तो अनिल जी 16,550 तक का टारगेट है। अनिल जी जो हमारा मानना है कि ये जो निफ्टी की आउट परफॉर्मेंस थी और जो शॉर्ट कवरिंग थी अनिल जी वो कल और आज के अंदर पूरी हो गई। और जो बहुत ज्यादा डर होता है ना कि आखिरी दिन का क्या हो जाएगा, तो वो लगता है कि कल और आज में शॉर्ट कवरिंग पूरी हो गई है तो निफ्टी ने चाहे ऊपर भी जाना है तो एक डिप लेके जाएगा अगर जाना है। तो अनिल जी इसलिए हमने निफ्टी की शॉर्ट कॉल दी है। हमें लगता है कि निफ्टी अनिल जी 16,550 तक और 600 के 550-600 के बीच में आएगा। तो इंस्टेड ऑफ लेने के अगर किसी ने स्प्रेड नहीं बनाया, अगर किसी को प्लेन वनीला बेचता है बट अनिल जी थोड़ा नीचे आ गया 25 पॉइंट तो रिस्क रिवॉर्ड थोड़ा सा कम है, तो ये ट्रेड अपने हिसाब से करें। हैविंग सेड दैट अनिल जी जेएसडब्ल्यू स्टील अभी 687-88 था जब वो पुट लेने के लिए बात की थी, 700 वाली भी और 690 वाली भी। 690 वाली तो शायद अनिल जी डबल हो गई है क्योंकि जेएसडब्ल्यू स्टील में 8 से 10 रुपए की डाउन मूव आई है। तो जेएसडब्ल्यू स्टील जो अनिल जी आइडेंटिफिकेशन थी वो भी एक्सीडेंट की ठीक थी। ये कल के लिए अनिल जी आईटीसी, जेएसडब्ल्यू, एलएनटी हाउसिंग फाइनेंस कुछ स्टॉक्स हैं जो मेरे लिस्ट के अंदर हैं जो बहुत ओवरबॉट है अनिल जी, अनाप शनाप रेटों पे कट सकते हैं, तो इसका बिल्कुल जरूर एक्सीडेंट्स का ध्यान रखें। और निफ्टी में अनिल जी मैं कल तक के लिए शॉर्ट कवरिंग की उम्मीद नहीं कर रहा हूं, थोड़ी सी डिप की उम्मीद कर रहा हूं, तो हमारा ये कॉल है। ओके, तो थोड़ी गिरावट निफ्टी में हो सकती है, 16,550 तक के लेवल्स आ सकते हैं, यानी कि यहां से 75 पॉइंट नीचे यहां पर बेचें, 20 पॉइंट और रिकवर होकर 16,640-45 के आसपास आए तो वहां पर और ऐड करें, 40 पॉइंट 50 पॉइंट ऊपर यानी कि 16,700 के आसपास का स्टॉप लॉस लगा लें। ये राय है आपके लिए आशीष सर की तरफ से। 16,550 के टारगेट के लिए निफ्टी फ्यूचर्स में बिकवाली करने की राय आपके लिए आती हुई दिख रही है। आइए बढ़ते हैं आगे। कमोडिटीज में एक्शन भरपूर है। पिछले कुछ दिनों की गिरावट के बाद पिछले 2 दिनों में कल और आज कमोडिटीज में जबरदस्त उछाल आता दिखा है, चाहे वो तेल हो या फिर मेटल्स। वरुण हमारे साथ तैयार है सारी डिटेल्स, रिसर्च और इंफॉर्मेशन लेकर। वरुण बताइए। डेफिनेटली अनिल जी, एकाएक अगर आप देखेंगे तो जितनी भी कमोडिटीज है वहाँ पे एक अच्छा खासा उछाल देखने मिला है। भले आप उसको आयरन ओर के देख लीजिए, कल सिंगापुर में आयरन ओर में करीब 9-10% के आसपास की बढ़ोतरी देखने मिली। डायलन इंडेक्स में भी अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने मिली, डायलन एक्सचेंज में, माफ कीजिएगा। इसके अलावा एलएमई में भी अगर आप देखेंगे तो कॉपर की कीमत जो है उसमें 2 से 3% के आसपास की बढ़ोतरी देखने मिली। शांघाई में रीबार और हॉट रोल्ड कॉइल के जो दाम है उसमें भी करीब 2 से 3% के आसपास की बढ़ोतरी देखने मिली है। कच्चा तेल 2 दिनों में करीब 9-10% के आसपास का उछाल यहाँ भी देखा गया है। सिर्फ ये ही नहीं, एल्यूमिनियम को भी अगर आप देखेंगे, एल्यूमिनियम माफ कीजिएगा, वो भी करीब 6 महीने के उच्चतम स्तर पे पहुंच चुका है। तो अक्रॉस बोर्ड अगर आप देखेंगे तो जितनी कमोडिटीज है वहां पे तेजी देखने मिल रही है। इसके काफी सारे कारण हैं। सबसे पहले तो यूएस ने फाइजर की जो दवा को अप्रूवल दिया है, अब तक केवल इमरजेंसी इस्तेमाल था, अब उसको अप्रूवल मिल चुका है। तो इसका एक बहुत बड़ा सेंटिमेंटल इम्पैक्ट देखने मिला है। कहीं ना कहीं लोग अब मान के चल रहे हैं कि एटलीस्ट ग्लोबली जो कोरोना का कहर है वो थोड़ा कम हो जाएगा। जिस तरह से पहले डर लग रहा था कि डेल्टा वेरिएंट के चलते हो सकता है कि सब तहस नहस हो जाए, उस तरह की सिचुएशन नहीं होगी। चीन में भी अगर आप देखेंगे तो काफी हद तक जो कोरोना के केसेस है वो कम हो चुके हैं। तो एक बड़ी ग्लोबल इकोनॉमी जो है वो अब सुधरते हुए दिखाई दे रही है, उसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट देखने मिल रहा है। इसके अलावा चीन की कुछ और भी बातें याद रखेंगे तो वहाँ पे जो इन्वेंट्री लेवल्स है ना वो काफी कम हो गए हैं। हाल में आपने देखा था कि चीन में काफी आफत आई थी बाढ़ के चलते, उसके चलते वहाँ पे काफी हद तक जो इन्वेंट्री लेवल्स है वो कम हो गए हैं, जो शिपमेंट्स है वो कम हो गए थे और इसके लिए वहाँ से डिमांड जो है वो काफी आ रही है। ये भी एक बड़ा कारण है जिसकी वजह से आपने देखा कि ओवरऑल जो जितनी भी कमोडिटीज है उनके दाम में अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने मिली। सिर्फ ये नहीं, डॉलर इंडेक्स पे भी नजर रखेगा। डॉलर इंडेक्स जो है पिछले कुछ दिनों में 93.7, 93.8 के आसपास पहुंच चुका था, 9 महीने के उच्चतम स्तर पे था, लेकिन वहां से करीब 60-70 बेसिस पॉइंट के आसपास की गिरावट जो है डॉलर इंडेक्स में देखने मिली और वहां से भी थोड़ी बहुत कमोडिटी को जो है सहारा मिला है। इसके लिए आपने देखा कि अच्छी खासी बढ़ोतरी जो है ओवरऑल कमोडिटीज में देखने मिली। एल्यूमिनियम का जो मैंने कहा कि 6 महीने के उच्चतम स्तर पे पहुंच चुका है, वहां भी एक जमाइका की रिफाइनरी है, वहां पे आग लगने के कारण कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट जो है वहां देखने मिला है एल्यूमिनियम में, और ये भी एल्यूमिनियम जो है वो 6 महीने के उच्चतम स्तर पे पहुंच चुका है। तो अक्रॉस बोर्ड अगर आप देखेंगे तो ग्लोबली कुछ ना कुछ तो चल रहा है, हर जगह कहीं डिमांड अच्छी आ रही है, कहीं दिक्कतें हैं, उसके चलते ग्लोबली जो कमोडिटीज है उसमें अच्छा खासा उछाल देखने मिल रहा है और आज भी वो उछाल जो है वो जारी है और अगर इस तरह के हालात रहे तो शायद उछाल आगे भी जारी रहे।
ओके, तो ये है आपके लिए कमोडिटी में एक्शन। आज हालांकि शुरुआत अच्छी हुई, ऊपर से थोड़ी मुनाफा वसूली हुई है, बट पिछले 2 दिनों में जबरदस्त एक्शन इस स्पेस पर आपको आते हुए दिखा है। नजर रखिए यहाँ पर, और एक्सपायरी के बाद शायद और थोड़ा मूवमेंट आते हुए दिखे। पर एक और बड़ी खबर है, और हालांकि भारतीय बाजार में इस समय आप इस पर ट्रेड नहीं कर पाएंगे, बट रेन्यू पावर ये हो गई है अब नैस्डैक पर लिस्ट। पहली रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी है भारत की जो नैस्डैक पर लिस्ट होती हुई दिखी है, तो बड़ी खबर है ये भी। आइए इसके बारे में थोड़ा जाने कुशल के साथ। कुशल, बताइए एग्जैक्टली क्या हुआ है, और पहली रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी जो नैस्डैक पर लिस्ट होती हुई दिखी है। बिल्कुल, वैसे तो भारतीय कंपनियों को अभी इजाज़त नहीं है कि वो डायरेक्टली जो है विदेशी एक्सचेंजेस पर लिस्ट हो सके, पर यहाँ पर इन्होंने एक डिफरेंट मैकेनिज्म के जरिए जो है अपनी लिस्टिंग कर ली है। और इनफैक्ट ये भारत की पहली रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी है जो वहाँ नैस्डैक पर लिस्ट होती हुई दिखी है। अब यहाँ पर इनका मार्केट कैप आप देखिए 33,500 करोड़ रुपए का मार्केट कैप इन्होंने हासिल कर लिया था। कल के सत्र में इसकी लिस्टिंग हुई थी, और इस लिस्टिंग के तहत कंपनी के पास कुल $70 करोड़ जो है आते हुए नजर आएंगे। और डेफिनेटली आगे जो इनके प्रोजेक्ट्स हैं उसको ये फर्दर जो इनकी पावर बिल्डिंग जनरेटिंग कैपेसिटी है उसको फर्दर ये इंक्रीज करने में उस चीज़ का इस्तेमाल किया जाएगा। अब ये मैकेनिज्म क्या है, स्पैक जो है इसके जरिए, जो स्पेशल पर्पस एक्विजिशन कंपनी है, इसके जरिए यहाँ पर ये लिस्टिंग इन्होंने की है। तो वहाँ पर जो नैस्डैक लिस्टेड आरएमजी एक्विजिशन कॉर्प 2 है उसके साथ इन्होंने मर्जर करके अपनी कंपनी की लिस्टिंग कर ली है। इनफैक्ट यहाँ पर अगर आप कारोबार पर भी नजर डालें दीपांशु, तो यहाँ पर कंपनी का जो मौजूदा ऑपरेटिंग कैपेसिटी है वो करीब 5600 मेगावाट की है, और 4300 मेगावाट अभी पाइपलाइन में है। और 2025 तक कंपनी ने ये टारगेट रखा है कि 18,500 मेगावाट की ऑपरेटिंग क्षमता पर ये पहुंच जाएंगे। और ये जो फंड रेजिंग हुई है यहाँ पर इक्विटी के जरिए जो पैसे ये जुटा रहे हैं, इससे इनकी पूरी की पूरी फंडिंग कंप्लीट हो जाएगी। तो इनको और फर्दर फंडिंग रेज करने की जरूरत नहीं है। पर अपने आप में ये बहुत ही प्रेस्टिजियस बात है कि जो भारत की एक जो सबसे बड़ी रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी है वो नैस्डैक पे जाकर लिस्ट हो गई है। बिल्कुल, तो बड़ी बात है ये, और चलिए देखते हैं किस तरह की इसकी चाल रहेगी। बट भारत की पहली रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी जो नैस्डैक पर लिस्ट आपको होती हुई दिखी है, बड़ी खबर है। और स्पैक के जरिए हमने देखा है कि यूएस के आईपीओ मार्केट में भी काफ़ी ज़्यादा एक्शन हुआ है, काफ़ी सारी कंपनीज ने इस रूट को लिया है बाजार में लिस्ट होने के लिए। रेन्यू पावर ये भी एक ऐसी कंपनी है जो वहां पर एक्शन दिखा रही है। भारत में देखें तो आज कुछ पावर कंपनीज में एक्शन आपको बनते हुए दिखा है, और उनमें से एक है टोरेंट पावर जो लंबे समय बाद थोड़ा मूवमेंट दिखा रही है। जेट टोरेंट पावर के चार्ट्स देखिए, कोई इंटरेस्ट ट्रेड दिखता है इसमें? बिल्कुल दीप, मुझे पसंद है ये स्टॉक। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये स्टॉक में क्लियरली एक कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट है। हालांकि और कंफर्मेशन आपको दीपांशु देखने मिलेगा लगभग 480 के ऊपर, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि वो ब्रेकआउट आना चाहिए, बिकॉज काफी ओवरसोल्ड हो चुका थे इसके मोमेंटम इंडिकेटर्स। जो हिसाब से ये स्टॉक में एक हमें जून महीने से एक सेलिंग देखने मिली, लगभग ये स्टॉक ने हम देखें तो 3 महीना कंसोलिडेट किया है, और रेंज भी कुछ ज्यादा बड़ी नहीं है दीपांशु। ऊपर में अगर हम देखें तो बहुत ही क्लोजली 480 एंड ऑन द डाउन साइड 440, तो ये 10% के रेंज में लगभग ये स्टॉक ने 3 महीने निकाल दिए दीप, है ना। मुझे लग रहा है कि रेंज में से ब्रेकआउट आना चाहिए ऊपर की तरफ। 480 के ऊपर अगर निकलता है दीप, एंड फिर से ये 500 के ऊपर, मतलब जो उसका प्रीवियस हाई था 512 के करीब, उसको निकाल देगा। एंड आई थिंक रिस्क रिवॉर्ड पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ही अच्छा हो जाएगा, बिकॉज इसका सपोर्ट जो इमीडिएट बेसिस पर है दीप वो भी 460 पे। तो अग्रेसिव ट्रेडर्स तो यहीं पे लॉन्ग कर सकते हैं, थोड़े कंजर्वेटिव ट्रेडर्स 480 के राह देखिए ब्रेकआउट की, उसके बाद खरीदिए। 512 के ऊपर के टारगेट्स होंगे इसके, 460 के नीचे आप स्टॉप लॉस प्लेस कर सकते हैं। ओके, तो ये है आपके लिए टोरेंट पावर। जय को पसंद है, 450 के करीब स्टॉप लॉस रखे, और 500 के ऊपर जाने की क्षमता काउंटर दिख रखता है। डेज हाई पर कर रहा है ट्रेड। आइए एक बिगुल सचित जी के लिए BTSTT। बताएं सचित जी। दीपांशु, यहाँ पर खरीदारी करनी है वापस HDFC बैंक इस पर्टिकुलर काउंटर में। मंडे के सेशन में हमने इसे ऑलमोस्ट इसके इनवर्स हेड एंड शोल्डर के शोल्डर फॉर्मेशन के आसपास
आइडेंटिफाई किया था 1525 के आसपास, 1560-65 के टारगेट के लिए। जिस तरीके से ये वेव इवॉल्व हो रही है, मुझे लग रहा है जल्द ही 1590 से लेके 1620 के आसपास के स्विंग्स बन सकते हैं। तो खरीदारी करनी है HDFC बैंक के सितंबर फ्यूचर में, जो लगभग अराउंड 1561-62 के आसपास फिलहाल ट्रेड कर रहा है। स्टॉप लॉस अभी आपको लगाना है अराउंड 1547 का। फर्स्ट टारगेट होगा अराउंड 1590 का और सेकंड टारगेट होगा अराउंड 1620 का। HDFC बैंक सितंबर फ्यूचर्स। बिल्कुल, तो HDFC बैंक पर रखिए नजर, ये एक्शन में आते हुए आपको दिख सकता है और बाकी बैंक्स के मुकाबले थोड़ी स्ट्रेंथ यहां पर आपको ज्यादा आती हुई दिखी है। पर आइए, एक बड़ा एक्शन आपको आते हुए दिख रहा है शिपिंग काउंटर्स में। यहां पर रखी नजर, जी शिपिंग 10% ऊपर, शेयर शिपिंग हालांकि छोटा काउंटर है, सर्किट पर ऑलरेडी है। शिपिंग कॉर्पोरेशन में भी आपने थोड़ा मूव देखा है। क्या चल रहा है शिपिंग इंडस्ट्री में जिसकी वजह से स्टॉक्स में है एक्शन, जानते हैं इसके बारे में वरुण के साथ। वरुण, बताइए क्या चल रहा है यहाँ पर। डेफिनेटली देखिए दीप, शिपिंग इंडस्ट्री को मैप करने का एक पैरामीटर होता है बाल्टिक ड्राई इंडेक्स, जो हमने आपको पहले भी बताया है। लेकिन अब ये बाल्टिक ड्राई इंडेक्स जो है वो 11 साल के सबसे उच्चतम स्तर पे पहुंच चुका है। 4000 के ऊपर जो है बाल्टिक ड्राई इंडेक्स पहुंच चुका है और जून 2010 के बाद पहली बार है जब ये 4000 के ऊपर पहुंचा है। दरअसल अगर आप देखेंगे तो कमोडिटीज में जिस तरह का रिबाउंड देखने मिला है, जो मैं आपको कुछ देर पहले बता रहा था, उसका इम्पैक्ट जो है वो कहीं ना कहीं बाल्टिक ड्राई इंडेक्स पे भी देखने मिल रहा है। खासकर चीन के तरफ से कमोडिटी की काफी हद तक जो डिमांड है वो बढ़ रही है। सिर्फ यही नहीं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हाल में चीन में जो बाढ़ आई थी उसके बाद जो ओवरऑल शिपिंग इंडस्ट्री है उसमें काफी हद तक कंजेशन हो गया है। यहाँ वहाँ अगर आप देखेंगे तो काफी जगह ऐसी है जहाँ पे कंटेनर्स अटके हुए हैं, तो कहीं ना कहीं कंटेनर्स की शॉर्टेज भी हुई है, उसका इम्पैक्ट भी देखा जा रहा है। और इसके पहले भी हमने देखा था, इसके पहले जब सेकंड वेव आई थी, उसके पहले जब हालात सुधरे थे, तो एक आध डिमांड किस तरह से बढ़ी थी और उसके बाद शिपिंग ओवरऑल जो है उसमें काफी हद तक कंटेनर्स की कमी हुई थी। उसी तरह का ट्रेंड जो है वो फिर से देखने मिल रहा है। जैसे जैसे ग्लोबल इकोनॉमीज खुल रही है वैसे वैसे ओवरऑल ट्रेड जो है उसमें अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने मिल रही है। और इस साल ये तो माना जा रहा है कि जो ट्रेड है उसमें करीब 4% के आसपास की बढ़ोतरी होगी। तो ये सब फैक्टर्स है जिसके कारण बाल्टिक ड्राई इंडेक्स जो है वो लगातार नई ऊंचाई छूते जा रहा है और अब 11 साल के सबसे उच्चतम स्तर पे पहुंच चुका है। भारत से बाहर अगर जाने वाले जो जहाज है उनके रेट्स अगर आप देखेंगे तो 6 महीने में वो दुगने हो चुके हैं। अगस्त में दाम कोरोना के पहले के स्तरों के मुकाबले 3 से 5 गुना ऊपर पहुंच चुके हैं। हर 7 से 10 दिन में रेट जो है उसमें बढ़ोतरी का ट्रेंड देखने मिल रहा है। इस स्पीड से शिपिंग के रेट जो है वो बढ़ते जा रहे हैं और अगले 6 महीने इसी तरह का ट्रेंड शायद देखने मिल सकता है, क्योंकि जो ओवरऑल ट्रेड है वो बढ़ते जा रहे हैं और अगले 6 महीने इसी तरह का ट्रेंड शायद देखने मिल सकता है, क्योंकि जो ओवरऑल ट्रेड है वो बढ़ते जा रहा है और उसी का इम्पैक्ट आप बाल्टिक ड्राई इंडेक्स में देख रहे हैं, उसी का इम्पैक्ट जो है आप शिपिंग कॉन्ट्रैक्ट से देख रहे हैं, जहाँ पे अच्छा खासा उछाल दिख रहा है। बिल्कुल, और शिपिंग काउंटर्स में जबरदस्त एक्शन है। और वरुण, आप जैसी बात कर रहे थे, शिपिंग कॉर्पोरेशन में भी एक स्पाइक उसी समय आपको आते हुए दिखा। जी शिपिंग, श्रेया शिपिंग दोनों ही एक्शन में थे, बट शिपिंग कॉर्पोरेशन में भी अब इसका स्पाइक आते हुए दिख रहा है। जैसे वरुण कह रहे हैं कि भारत में भी जो शिपिंग रेट्स हैं उसमें बड़ा उछाल आ रहा है। एक बार जरा राय भी ली जाए बंसल जी से, जहां तक शिपिंग कॉर्पोरेशन का सवाल है। बंसल जी, काफी समय से स्टॉक पर चर्चा भी नहीं हुई है और आज फाइनली बाकी शिपिंग कंपनीज के साथ साथ ये भी आपको थोड़ा एक्शन में आते हुए दिख रहा है। क्या करना चाहिए बंसल जी शिपिंग कॉर्पोरेशन में? देखिए दीपांशु, नीचे में एक सपोर्ट लिया है स्टॉक ने और आज एक पॉजिटिव क्रॉसओवर देखने को मिला है। तो जिनके पास है दीपांशु, यहाँ पर 99 रुपीज का एक स्टॉप लॉस लगाना चाहिए और टेक्निकली नेक्स्ट रेजिस्टेंस आता है 105, 106 की ओर। तो एज ऑफ नाउ जिनके पास है 105, 106 के टारगेट के लिए होल्ड करें। एक बार 105, 106 का लेवल टूटता ऊपर में तब इसको रिव्यू करेंगे। एज ऑफ नाउ 105, 106 इज अ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन। ओके, तो 105, 106 एक बड़ी रेजिस्टेंस आ सकती है, वहां पर आपको रखनी है नजर। बट शिपिंग कॉर्पोरेशन डेफिनेटली मूवमेंट में आ रहा है। जी शिपिंग, यहां पर भी आप एक्शन देख रहे हैं। थोड़ी खबरें आ रही हैं सिप्ला के लिए भी। केमवेल बायोफार्मा के साथ कंपनी ने एक जेवी का गठन किया है जिसमें सिप्ला की 60% हिस्सेदारी होने वाली है। ये खबर आपके लिए सिप्ला पर आपको आती हुई दिख रही है फिलहाल। और ये जेवी जो इन्होंने फॉर्म करा है, ये बायोलॉजिक्स प्रोडक्ट्स के लिए जेवी का गठन किया गया है। तो ये बड़ी खबर आ रही है कि बायोलॉजिक सेगमेंट में अब सिप्ला एक जेवी के जरिए कामकाज करने वाला है। ये आपकी खबर। हालांकि स्टॉक पर थोड़ा दबाव रहा है, जिस तरह बाकी फार्मा स्टॉक्स पर भी हमने पिछले कुछ दिनों से प्रेशर देखा है। बट सिप्ला की चार्ट
स्टार्ट। बागले साहब जरा इस पर राय दें, कैसा लगता है ट्रेंड 915 के लेवल पर? दीपांशु, मेरे को तो बिल्कुल साइडवेज लगता है। मैं ये नहीं कहूंगा कि इसको बेचा जा सकता है, क्योंकि एक रेंज में है। 905 907 का एक स्ट्रांग सपोर्ट है, 920-22 का एक स्ट्रांग रेजिस्टेंस है। ये मुझे शायद अगले 1 से 2 दिनों में ब्रेक होते हुए नहीं लगता है। तो मेरे पास कोई क्लियर व्यू है नहीं। कुछ और स्टॉक्स जो बढ़िया एक्शन में दिख रहे हैं उनमें से एक हिंद रेक्टिफायर्स, ये स्टॉक आपके सामने लेकर आएंगे। अभी थोड़ी देर पहले सिटी साहब ने 165 रुपए पर यहां पर खरीदारी करने की राय दी थी 185 रुपए के टारगेट के लिए। स्टॉक 20% के ऊपरी सर्किट तक पहुंचता हुआ 185 का टारगेट डन फॉर द डे। 184.50 को 185 मान लिया जाए, क्योंकि अब इससे आगे आज बढ़ नहीं सकता, तो आज के टारगेट्स हासिल होते हुए हिंद रेक्टिफायर सिटी साहब की पसंद का शेयर 20 रुपए की तेज उछाल दिखाता हुआ दिन के दौरान ही जबरदस्त एक्शन में आता हुआ दिख रहा है। एक और स्टॉक जो सिटी साहब लगातार पिछले कुछ दिनों से रिकमेंड करते आए हैं वो है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, HAL। ये भी वायदा कारोबार में शामिल होने की तैयारी में। ये स्टॉक भी आज 7-8% का बड़ा उछाल HAL दिखाते हुए नजर आएगा। यहां पर भी शानदार खरीदारी होती दिख रही है। मुझे याद है पिछले 3-4 दिनों में 2 या 3 बार HAL की रिकमेंडेशन उनकी तरफ से अलग अलग शोज में आई है। स्टॉक में जबरदस्त मजबूती दिखती नजर आ रही है। मजबूती दिख रही 2 ऐसे स्टॉक्स में जिसमें कल आपने जी बिजनेस की तरफ से एक एक्सक्लूसिव खबर सुनी सुबह सुबह, और वो खबर थी दिल्ली की ऑक्सीजन पॉलिसी को लेकर। जी हां, रेफेक्स इंडस्ट्रीज और लिंडे इंडिया। रेफेक्स इंडस्ट्री मुझे इसलिए याद रहेगा क्योंकि इसका नाम रिफ्लेक्स करके चलाया था, तो मैंने कहा भी था कि इसे रेफेक्स कर दे। रेफेक्स इंडिया 20% ऊपर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, और लिंडे इंडिया भी लगभग 17-18% ऊपर। हो सकता है या तो लोगों को अब समझ में आ रहा हो कि ये एक नई पॉलिसी जो बनी है दिल्ली में, उसका असर इन कंपनियों पर पड़ता हुआ दिखेगा, या फिर कोरोना को लेकर फिर से डर, आज वापस से बातें हो रही कि हो सकता है कोरोना की तीसरी लहर बड़ी खतरनाक साबित हो। काफ़ी खबरें अखबारों में आती हुई दिख रही है, ये सारी चीज़ें हैं। तो उसके चलते हुए फिर से ऑक्सीजन प्रोड्यूस करने वाले शेयर लगातार सुर्खियों में आते दिख रहे हैं। सुमित जी थे हमारे साथ, मैंने सुमित जी से रेफेक्स पर राय भी ली थी और उन्होंने कहा था कि स्टॉक बहुत तेज दौड़ लगाने को तैयार है। और लिंडे इंडिया हमेशा की तरह कुणाल जी का रहा है फेवरेट, और कुणाल जी ने वहां पर भी खरीदारी करने की राय दी। कुणाल जी एक बार फिर से अपडेट दें, लिंडे इंडिया के चार्ट्स देखें। और किरण जी, आप रेफेक्स के चार्ट तो छोड़ दो किरण जी, अब 20% का सर्किट लग चुका है। तो आइए मैं एक बार जल्दी से पहले कुणाल जी से लिंडे इंडिया के चार्ट्स पर राय ले लूं। बताएं सर। अरे जी देखिए, बिल्कुल आपने जब इस पर राय मांगी थी, जब ये खबर आपने ब्रेक की थी, उस समय शायद इतना बड़ा इंपैक्ट नहीं आया, लेकिन अब देखिए कितना जबरदस्त इंपैक्ट लिंडे इंडिया पर आता हुआ दिख रहा है। तूफानी तेजी है। मुझे लगता है कि अनिल जी तेजी थोड़ी ओवरडन हो गई है। तो जिनके पास पोजीशन है, अगर उन्होंने उस समय सुन करके लिया था, बड़ा मुनाफा हो रहा है, एक बार के लिए प्रॉफिट बुक करें। गिरावट में दोबारा खरीदारी के अवसर आएंगे, क्योंकि 2 दिनों में स्टॉक इतना भाग गया है। एक बार के लिए प्रॉफिट बुक करने की मेरी राय है। एक बार प्रॉफिट बुक करें और एंजॉय करें लाइफ। थोड़ा जरूरत से ज्यादा भाग चुका है और अब यहां पर मुनाफा वसूल करें, फिर से नीचे आए तो करें खरीदारी। आपके लिए ये ज्यादा ठीक रहेगा। ये राय है आपके लिए कुणाल जी की तरफ से आती हुई। आइए बढ़ते आगे। वक्त है उस लिस्ट पर नजर डालने का जिन पर नजरें उन सबकी बनी होती, जिनकी पोजीशन उन सारे शेयरों में हैं या बनाने का इरादा रखते हैं, यानी कि बैन में आने जाने और ठहरे रहने वाले शेयरों की लिस्ट। बैन से बेनिफिट आशीष है तैयार। बताएं आशीष, पहले तो कोई बाहर निकलने की तैयारी? बिल्कुल अनिल जी, फिलहाल 4 स्टॉक बैन में, 4 में से 1 स्टॉक ऐसा है जो बैन से बाहर आएगा, वो है कैनरा बैंक। लंबे समय से स्टॉक बैन में बना हुआ है। हालांकि अभी भी पोजीशंस जो है 80% से नीचे नहीं है, 80.3% है मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट। लेकिन पूरी संभावना है, क्योंकि अब सारी खबरें बाहर आ चुकी हैं, स्टॉक में भी देखिए इंपैक्ट आ चुका है, तो हो सकता है कि कैनरा बैंक जो है बैन से बाहर आ जाए। तो बाकी के जो 3 स्टॉक हैं वो बैन में बने रहेंगे। लेकिन आज देखिए री एंट्री होती हुई नजर आएगी सन टीवी की। कल ही जो है स्टॉक बैन से बाहर आया था, लेकिन मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट में अगर आप देखें तो बहुत बड़ा उछाल देखने को मिला है। फिलहाल अगर आप देखें तो करीब 132% हो गई है मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट, यानी कैनरा बैंक जो है स्टॉक बैन से बाहर आएगा। सन टीवी हो सकता है कि 1 दिन के लिए एंट्री करे।
ओके, तो पहला तो है 80% के आसपास आ चुका है आपका कैनरा बैंक, मोस्टली आ जाएगा बाहर। आजकल क्या है, वो मंथली एक्सपायरी है ना, तो रोल ओवर्स होते हैं, आखिरी आधे घंटे में काफी कुछ रोल ओवर्स होते हैं, पोजीशन जनरली घटती है, बढ़ती नहीं है। तो 80% के आसपास है, तो आपका ये तो आ गया बाहर। कौन सा? कैनरा बैंक। अब सन टीवी एक ही दिन के लिए बाहर घूमने आया था लगता है ना? बिल्कुल सन टीवी आज तो बाहर आया, कब आया था? एक बार एक ही दिन के लिए आएगा। हाँ, ओके, एक दिन के लिए। ना 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 ना, ऐसा नहीं है आशीष, जरूरी नहीं कि एक ही दिन के लिए, हो सकता है वापस बना रह जाए। बीच में एक दो बार ऐसे केस हुए, एक तो रिलायंस कैपिटल का मुझे याद है, सीरीज के पहले दिन ही बैन में। तो आमतौर पर होता ही है कि सीरीज के आखिरी दिन कई सारे लोग ये सोचते हैं कि सीरीज के आखिरी दिन स्टॉक बैन से बाहर कैसे निकल जाते हैं। उसकी वजह ये है कि जब बैन में मार्केट वाइड ओपन पोजीशन गिनी जाती है, तो वो दोनों की गिनी जाती है, स्टॉक फ्यूचर्स की भी और माफ कीजिएगा, फ्यूचर्स की भी और ऑप्शंस की भी। तो कोई भी स्टॉक है तो उसके स्टॉक फ्यूचर्स की जो ओपन इंटरेस्ट है वो भी गिनी जाएगी, ऑप्शंस में कॉल ऑप्शंस, पुट ऑप्शंस में सारी ओपन इंटरेस्ट जो है वो भी गिनी जाएगी। अब होता क्या है, मंथली सीरीज है, महीने के आखिर में पुट या कॉल ऑप्शन तो सारे के सारे एक्सपायर होने ही होने, कंपल्सरी है। जो भी उस दिन की कैश की प्राइस क्लोजिंग है उस प्राइस के बेसिस पर ऑप्शन हो जाएंगे एक्सपायर। तो जैसे ही ऑप्शन एक्सपायर होते हैं तो आमतौर पर वो पोजीशन 80% के नीचे आ जाती है। बहुत कम केस ऐसा होता है कि जिसमें फ्यूचर ही बहुत ज्यादा हो और फिर उन्होंने रोल ओवर कर लिया, करा लिया हो, तब तो अलग बात है। अदरवाइज आमतौर पर सीरीज के पहले दिन आपको एक भी स्टॉक बैन में जो नहीं दिखता है, उसकी वजह यह है कि सारे ऑप्शंस एक्सपायर हो जाते हैं एक्सपायरी के दिन, और फ्यूचर्स की पोजीशन उतनी ज्यादा नहीं होती। ऑप्शन की पोजीशन हट जाने के बाद 80% के नीचे मार्केट वाइड पोजीशन ओपन इंटरेस्ट रह जाता है, और इसीलिए ये सारे के सारे स्टॉक्स बैन से बाहर आते हैं। फिलहाल आज एफएनओ बैन में बने रहेंगे सेल और साथ ही आइडिया। कैनरा बैंक बाहर आने की तैयारी में, एनएमडीसी भी बना रह सकता है, सन टीवी घूम फिर के वापस अंदर चला जाएगा। ढेर सारे स्टॉक्स आज एक्शन में आते हुए दिख रहे हैं, उनमें से एक और स्टॉक पिछले कुछ मिनटों में तेजी से आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है। अभी शिपिंग स्टॉक्स की बात कर रहे थे, डायरेक्टली शिपिंग तो नहीं लेकिन शिपिंग से जुड़ा हुआ ही ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन एक और ये सरकारी कंपनी है जो पिछले कुछ मिनटों में बड़ी तेजी से बाहर भागा है। 7% का बड़ा उछाल आते हुए दिखा है ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन में। तो चूंकि 20% का सर्किट रेफेक्स पे लग चुका था, तो किरण जी मैं आपसे राय नहीं ले पाया, उसके बजाय मैं आपको मौका दे रहा हूं ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन पर अपनी राय देने का। बताएं सर इसके चार्ट्स। अनिल जी, ये भी चार्ट पैटर्न अच्छा है, एक डबल बॉटम लॉन्ग टर्म चार्ट्स पे हुआ है लगभग 325-30 के आसपास। इधर से ही एक अच्छी मूव आ गई है। तो नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस है अनिल जी वो सीधा 380 का है, तो वो टारगेट्स मान के चलने चाहिए 380 के आसपास के, वहां पे एक बार रिव्यू ले लेंगे। चार्ट पैटर्न लॉन्ग टर्म के हिसाब से बहुत अच्छा है। तो ये है आपके लिए राय इस वक्त ड्रेजिंग। माय गॉड, 360, क्या गजब, 363, 11%, कमाल ही है। बड़ी तेज दौड़ लगाता हुआ दिख रहा है, भागे जा रहा है स्टॉक नॉन स्टॉप। ये है आपके लिए ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन। और सन टीवी दीप बता रहे हैं कि अगस्त सीरीज में शुरुआत में 2 तारीख को, दीप अगस्त सीरीज के पहले दिन दूसरे दिन ही बैन में चला गया था, पहले दिन बैन में ही आया या दूसरे दिन? बिल्कुल सर, पहले दिन ही बैन में आ गया था एक्चुअली। फिर पर रिफ्लेक्ट तो वो मंडे को ही होगा, पर सीरीज की शुरुआत 30 जुलाई को जब हुई थी तो उस दिन इतनी पोजीशंस बनी कि फिर उसके बाद बैन में आ गया। तो मंडे के दिन 2 अगस्त को ये बैन में था। तो अब वैसे आप कह सकते हैं कि सीरीज के दूसरे दिन ही सन टीवी बैन में आ गया था। बट जो आप पॉइंट मेक कर रहे थे कि पहले ही दिन वैसा एक्शन हो सकता है, हमने ये ऑलरेडी सन टीवी में इस सीरीज में देख लिया है सर। और 2 अगस्त को मंडे का दिन था जब सीरीज का दूसरा ट्रेडिंग डे था, ये स्टॉक ऑलरेडी बैन में था। ओके, तो सन टीवी का स्टॉक भी सीरीज के पहले दिन से बैन में आता हुआ दिख रहा है। मैं वही कह रहा हूं कि बीच बीच में कभी कभार ऐसे एक आध केस आते हैं जहां सीरीज के पहले दिन ही स्टॉक बैन में रहता है। आमतौर पर कम होता है, ये बात सही है, बहुत कम देखने को मिलता है। मतलब ऐसा एक्सेप्शनल केसेस में ही होता है। एक आध बार पहले रिलायंस कैपिटल में मुझे याद है, और अभी ये सन टीवी में होता हुआ दिखा है। तो आमतौर पर सीरीज के पहले दिन बैन से बाहर निकल जाते हैं, लेकिन कुछ स्टॉक्स हैं जो बैन में बने रहते हैं। ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन का हम अभी बात कर रहे थे, 10% का बड़ा उछाल ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन में आता हुआ दिख रहा है। कैश के स्टॉक्स में वो एक्शन फिर से आता हुआ दिख रहा है जो आप पहले देखा करते थे, एंजॉय करते थे। ढेर सारे स्टॉक्स हैं जहां पर खबरें हैं और खबरों के दम पर पूरा एक्शन। और ऐसा ही एक और स्टॉक आपके लिए लेकर आ रहे हैं सचिन जी, बिगुल उनके लिए BTSTT का।
बनाएं सर। अनिल जी, खरीदारी करनी है वेंकीज इंडिया इस पर्टिकुलर काउंटर में। जिस तरीके से इसका स्ट्रक्चर है, लगभग 8 हफ्तों के गिरावट के बाद यहाँ पर एक काफी क्लियर कॉन्फिडेंट रिवर्सल फॉर्मेशन है वीकली चार्ट पे। जिस तरीके से ये रिबाउंड हुआ है, मुझे लग रहा है लगभग अराउंड 3360 और 3600 ये दो टारगेट्स के लिए अटेम्प्ट हो सकते हैं। तो अभी भी खरीदारी करनी चाहिए वेंकीज इंडिया में। स्टॉप लॉस में थोड़ा सा लंबा दे रहा हूँ यहाँ पर अराउंड 2785 का। एंड थोड़ा सा अगर डिक्लाइन मिल जाता है 20-30 पॉइंट्स का, तो डेफिनेटली अग्रेसिवली यहाँ पर लॉन्ग्स ऐड करने चाहिए। पहला टारगेट होगा 3360 का, सेकंड टारगेट होगा 3600 का। खरीदारी करनी है वेंकीज इंडिया में। ओके, तो ये है आपके लिए वेंकीज इंडिया। अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया भी था कि सोयाबीन केक्स के इंपोर्ट के लिए जो सरकार ने मंजूरी दी है, जी बिजनेस की खबर पर मुहर लगी है। इन सारे स्टॉक्स पर आपको रखनी है नजर और उसका आप इंपैक्ट भी यहां पर आते हुए देख रहे हैं। तो जबरदस्त एक्शन वेंकीज में होते हुए दिख रहा है। कुछ और काउंटर्स मिड कैप्स पर रखिए नजर, क्योंकि यहीं पर आपको बढ़िया तेजी बनती हुई दिख रही है। एबी फैशन यहां पर भी आप रखिए नजर, इस पर भी आप थोड़ा आज वैसे सुस्ती देख रहे हैं, बट अगर कुछ समय का एक्शन देखें तो ट्रिगर्स बनते हुए दिख रहे हैं, जिसकी वजह से स्टॉक में आने वाले समय में एक्शन बनते हुए दिख सकता है। आइए जानते हैं मानसी के साथ क्या है ये ट्रिगर्स। दीपांशु, बिल्कुल सही कहा आपने। एक्सपेंशन प्लान्स है कंपनी के, साथ ही कंपनी फंड रेज भी कर रही है, जिसके चलते आने वाले दिनों में अच्छे ट्रिगर्स के पूरे यहां पर अनुमान है। मजबूत रिकवरी की उम्मीद है। अपनी इंडस्ट्री की दूसरी अपैरल कंपनीज के मुकाबले एबी फैशन की रिकवरी काफी तेज होती हुई दिख रही है। Q4 FY21 में कंपनी के रिटेल ऑनलाइन सेगमेंट में 110% की रिकवरी देखने को मिली है और Q1 FY22 यानी जून तिमाही में कंपनी के रिटेल और ऑनलाइन सेगमेंट में करीब 40% की रिकवरी हमने देखी है। जुलाई 2021 के मुकाबले अगस्त में रिकवरी और ज्यादा तेज होने के अनुमान है। इसकी वजह भी है, एक तो मजबूत ऑपरेशनल नेटवर्क और एंड ऑफ सीजन सेल का फायदा है जो कि कंपनी को देखने को मिलेगा। मांग यहां पर बढ़ती हुई देखने को मिल सकती है। इसी के चलते अगस्त के एंड तक रिकवरी पूरी तरह से तेजी से आने की उम्मीद है। कंपनी के एक्सपेंशन प्लान से काफी हद तक फायदा होगा। अगले 3 सालों में करीब 250 पेंटालून स्टोर खोलने का लक्ष्य यहां पर कंपनी बनाकर चल रही है। FY25 तक प्राइवेट लेबल शेयर 61% से बढ़ाकर 75% करने का लक्ष्य है और FY21 में ई कॉमर्स चैनल की अगर बात करें 3 गुना बढ़त देखने की उम्मीद लगेगी और FY25 तक बिक्री में 8 से 10% योगदान जो है ई कॉमर्स से होने की उम्मीद है। तो क्लियरली फिलहाल FY21 में जो 3 गुना की बढ़त दिख सकती है, FY25 तक भी ई कॉमर्स चैनल काफी ज्यादा दमदार एक्शन दिखाएगा। हाल ही में निवेशक और प्रमोटर से 439 करोड़ जुटाए हैं कंपनी ने और जुलाई 21 के रिकवरी ट्रेंड को जो मैं बोल रही हूं उसे समझने की कोशिश करें। लाइफस्टाइल बिजनेस में 85% की रिकवरी दिखी है। इनके पैंटलून के सेगमेंट में 70% की रिकवरी दिखी है। तो रिकवरी मार्च तिमाही से ही देखने को मिल चुकी है और अगस्त में आते आते एंड ऑफ सीजन सेल ऑपरेशनल नेटवर्क के चलते और ज्यादा तेजी की उम्मीद है। तो एबी फैशन पर नजर होनी चाहिए। मानसी, आपकी तरफ से कोई कंट्रीब्यूशन इस रिकवरी में? कुछ खरीदारी इस फेस्टिव सीजन की शुरुआत के पहले दमदार स्टोर्स में जाके ई कॉमर्स पर कुछ आपने भी किया है? जैसे मेरी रिसर्च बिल्कुल जी बिल्कुल सर, आप बिल्कुल सही अनुमान लगा रहे हैं। और जैसे एंड ऑफ सीजन सेल की बात चली, मैंने भी वही सोचा था कि अब सेल अगर आ ही गया है तो कुछ करना चाहिए। चलिए, बढ़िया है। इसी तरह से आप इकोनॉमिक ग्रोथ में अपनी तरफ से जितना कंट्रीब्यूशन कर सकती हैं जरूर करें, करती रहें, ये आपके लिए। इस बीच 3i इन्फोटेक पर भी आपके लिए इंटरेस्टिंग रिसर्च आ रही है, क्योंकि शुक्रवार से इस शेयर की ट्रेडिंग बंद होने वाली है। थोड़ी देर में हम आपके सामने डिटेल्स रखेंगे कि क्या कुछ होने जा रहा है, लेकिन उससे पहले कुणाल जी और राकेश जी तैयार है एक बिगुल उनके लिए चार्ट कॉर्नर का। बताएं सर। अनिल जी, खरीदारी की राय है एस्कॉर्ट्स के ऊपर। एस्कॉर्ट्स में देखें तो एक नीट क्लीन क्लियर ब्रेकआउट है। आज तो ये स्टॉक डेज हाइस के अराउंड क्लोज कर रहा है। आज के एक पॉजिटिव क्रॉसओवर है, तो एस्कॉर्ट्स में एक अच्छे उछाल की आशा है। ओवर टू कुणाल जी।
कुणाल जी आपका साथ देने के लिए तैयार नहीं है, क्या आप अकेले ही अपने लेवल्स बताने की कोशिश करेंगे या फिर जब कुणाल जी आएंगे तब के लिए इंतजार किया जाए? बंसल जी बताएं। नहीं अनिल जी, लेवल्स मैं शेयर कर दूंगा। अनिल, लेवल्स में कोई दिक्कत नहीं है। 1324 का 1324 का एक स्टॉप लॉस लगाना है और ऊपर में पहला टारगेट है 1380 से लेकर 1390 के टारगेट जोन के लिए एस्कॉर्ट्स पर खरीदारी की राय है। अच्छा, जब आप कॉल देते हैं बंसल जी, आप और दोनों कुणाल जी मिलकर, तो आपके बीच में कैसे डिसाइड होता है कि कौन भाषण देगा, कौन लेवल देगा? ऐसा कुछ तो होता होगा। और कभी ऐसा होता है कि किसी में आपको लेवल का ज्यादा कॉन्फिडेंस हो तो आप बोलो कुणाल नहीं लेवल तो मैं दूंगा, किसी में कम हो तो आप बोले ज्ञान मेरा ले लेने दो, लेवल आप दो, ऐसा कुछ कभी तो मतलब कोई तो डिस्प्यूट होता होगा थोड़ा बहुत। नहीं अनिल जी, देखिए इसमें कुछ नहीं होता है। इसमें अनिल जी एक रिसर्च हमने करी थी, उसमें पाया कि अनिल जी अगर लेवल्स मैं देता हूं तो अक्सर एक गुगली आती है आपकी तरफ से कि स्टॉप लॉस बड़ा है छोटा है, तो उससे बचने के लिए अनिल जी मैं लेवल्स को अवॉइड करता हूं। और अगर वही लेवल्स कुणाल जी देते हैं तो वो गुगली नहीं आती अनिल जी, तो मोस्ट केसेस में इसलिए लेवल्स कुणाल जी देते हैं। अच्छा, ओके, ऐसा है। चिंता मत करें, मैं कुछ ऐसा करता हूं कि मैं आपके ज्ञान पर उंगली उठाना शुरू करूंगा, फिर आपके वापस लेवल्स आने लगे। देखो, मेरे को तो जो करना है मैं कर ही सकता हूं, कैसे भी कर सकता हूं, जैसा अभी किया है। लेकिन ठीक है, आप दोनों के बीच में जो कफरा। अच्छा, अगर सपोज मैं आपको कुछ भी बोलना बंद कर दूं तो लेवल्स आप देंगे कल से फिर? नहीं अनिल जी, देखिए इसमें 2-3 चीजें और भी हैं। कई बार कुणाल जी का कॉन्फिडेंस काफी ज्यादा होता है या मतलब कि कोई पैटर्न ऐसा होता है तो वो उनका मैसेज आता है, जैसे बलरामपुर चीनी के लिए आता है कि टेक, तो उसमें आता है कि यू गिव लेवल्स। तो मोस्ट केसेस में अनिल जी जहां कुणाल जी को बोलना होता है उनका मैसेज आता है कि आई विल स्टार्ट। तो ऐसा नहीं है कि वो नहीं है। बट अनिल जी, अगर आप मतलब कि ये लेवल्स पे काफी बार हुआ है ऐसा कि स्टॉप लॉस जो होते हैं ना उस पर, तो अगर वो आना बंद हो जाए तो अनिल जी मैं लेवल्स भी देने शुरू कर दूंगा। अरे वंडरफुल, बिल्कुल बिल्कुल दीजिए, दिल खोल के दीजिए, मुझसे डरिए मत। और मुझसे डर के बचेंगे तो कितना बचेंगे, कहाँ बचेंगे बंसल जी? मैं तो कहीं भी आपके पकड़ ही लूंगा, ऐसे चिंता न करें। इसलिए मतलब एकदम वो सीना तान कर मेरा सामना करें, ये मेरी आपको सलाह है। आइए, इस बीच स्टॉक एक मजबूती के साथ आगे बढ़ता दिख रहा है, जो आशु जी ने थोड़ी देर पहले रिकमेंड किया था, और वो है डेल्टा कॉप। यहाँ पर भी अच्छी खरीदारी होती दिख रही है, एक्शन में आता हुआ दिख रहा है स्टॉक। मेरे ख्याल से डे हाई पर आया है जहाँ तक मेरा अंदाजा है। थोड़ी देर पिछले कुछ मिनटों में, हाँ, 179 175 174 रुपए के आसपास आशु सर ने रिकमेंड किया था, डे हाई पर पहुंचता हुआ दिख रहा है स्टॉक में। अच्छी खरीदारी पिछले आधे घंटे में आती हुई दिख रही है। आइए बढ़ते हैं आगे, और अब देवांशी हमारे साथ तैयार है, और ये स्पेशल लिंक, स्पेशल रिसर्च है आपके लिए 3i इन्फोटेक पर। ओके, देवांशी थोड़ी देर में जुड़ने की तैयारी में जुड़ेंगी, और तब हम उनसे फिर से बातचीत करेंगे भी। लेकिन आइए तब तक एक बार थोड़ा और एक्शन बाजार का आपके सामने रख दिया जाए। वहां पर भरपूर एक्शन है। क्रेडिट कार्ड स्टॉक्स काफी एक्शन में दिख रहे हैं, और उनमें से आज एसबीआई कार्ड जय ठक्कर ने रिकमेंड किया है, सचिन जी ने रिकमेंड किया है, और क्या कुछ एक्शन हो रहा है बताने के लिए तैयार है वरुण हमारे साथ। वरुण, बताइए क्रेडिट कार्ड कंपनियों में क्या एक्शन है? डेफिनेटली अनिल जी, दरअसल ये एक रिपोर्ट है आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज की, और ये रिपोर्ट हाईलाइट करती है कि क्रेडिट कार्ड से जो लोग खर्च करते थे वो खर्चे में अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने मिली है। दरअसल हुआ ये था कि अप्रैल और मई में लॉकडाउन के चलते थोड़े बहुत खर्च में कमी आई थी, लेकिन जून में जो क्रेडिट कार्ड से होने वाले खर्च है उसमें महीने दर महीने करीब 20% के आसपास का उछाल देखने मिला है। और इसी के चलते इनका मानना है कि दूसरी तिमाही में क्रेडिट कार्ड कंपनी जो है उनके ओवरऑल क्रेडिट कार्ड से होने वाले खर्च में अच्छी खासी बढ़ोतरी हो सकती है। साल दर साल 59% और तिमाही दर तिमाही करीब 35% के आसपास का उछाल होगा। और एसबीआई कार्ड के जो ओवरऑल खर्च है उसमें करीब 53% साल दर साल और 6% के आसपास क्वार्टर आपको जम देखने मिलेगा। सिर्फ यही नहीं, डेबिट कार्ड के मुकाबले अगर आप देखेंगे तो क्रेडिट कार्ड में करीब 23% ज्यादा खर्चे हुए हैं, यानी कि लोग डेबिट कार्ड के मुकाबले क्रेडिट कार्ड से ज्यादा खर्च कर रहे हैं। प्रतिदिन क्रेडिट कार्ड से होने वाला खर्च जो है वो 13.8 बिलियन के आसपास था अप्रैल में, जो अब बढ़ के करीब 19.2 बिलियन रुपीस के आसपास पहुंच चुका है। और इंडस्ट्री में महीने दर महीने प्रति ट्रांजैक्शन जो है, प्रति कार्ड ट्रांजैक्शन जो है, वो पहले करीब 5% के आसपास उसमें बढ़ोतरी देखने मिली है, और एसबीआई कार्ड में इसमें करीब 3% के आसपास की बढ़ोतरी हुई है। मार्केट शेयर नो डाउट एसबीआई कार्ड से करीब 30 बेसिस पॉइंट अगर आप देखेंगे तो उसको गेन किया है जून में। इसके अलावा एचडीएफसी बैंक ने लूज किया है, आरबीएल बैंक ने लूज किया है, एक्सिस बैंक का जो है वो 8.3% के आसपास दर रहा है।
इसके साथ और एक चीज हुई है, वो ये है कि महीने दर महीने जो क्रेडिट कार्ड के आउटस्टैंडिंग थी ना, उसमें कमी आई है करीब 1.6% के आसपास की। तो ये भी क्रेडिट कार्ड कंपनी के लिए एक अच्छी बात है। पर हाँ, जैसे जैसे डिजिटल ट्रांजेक्शन बढ़ रहे हैं तो यूटीआई पेमेंट्स का जो ओवरऑल मार्केट शेयर है वो भी बढ़ते जा रहा है। 11.7% से बढ़ के अब 18% के आसपास आ चुका है। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो डिजिटल ट्रांजैक्शन में वैसे ही बढ़ोतरी हो रही है और क्रेडिट कार्ड कंपनी जो है उनसे होने वाले खर्च जो लोग करते हैं उसमें भी अच्छी खासी बढ़ोतरी देखी गई है जून और अगस्त के महीने। और क्या बात है। और क्रेडिट कार्ड पे से खर्चा करने वालों की तादाद बढ़ रही है और साथ ही आउटस्टैंडिंग अमाउंट भी कम हो रहा है, यानी कि लोग खर्चा भी कर रहे हैं और टाइम से भुगतान भी कर रहे हैं। ये तो मतलब बहुत ही बढ़िया बात है, यानी कि डिजिटल पेमेंट की तरफ लोग ज्यादा आकर्षित होते हुए दिख रहे हैं। इसमें आइए बढ़ते हैं आगे। ये है आपके लिए एसबीआई कार्ड जो 1050 में रिकमेंड किया था अभी थोड़ी देर पहले सचिन जी ने भी और जय ठक्कर ने भी। देखिए स्टॉक 1070 के आसपास ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, 20 रुपए ऊपर। शो की शुरुआत में यहां से जो रिकमेंडेशन आई, एक्शन भरपूर होता हुआ दिख रहा है 1065-66 के आसपास। आइए अब वक्त है 3-20 की स्ट्रेटेजी का, तो चलते हैं दीप के पास। अनिल जी, डाउ फ्यूचर्स मामूली बढ़त आपको दिखा रहे हैं इस समय, कुछ ज्यादा एक्शन नहीं है, एकदम सपाट ट्रेंड है। नैस्डैक फ्यूचर्स हल्की बढ़त है, हालांकि पिछले 2 दिनों से नए रिकॉर्ड्स बना रहा है। यूरोप के बाजार भी ज्यादातर पॉजिटिव दिखेंगे। कच्चे तेल और सोने दोनों में आज आपने गिरावट देखी, करीब 0.5% नीचे है। बॉन्ड यील्ड भी अब 1.3% के आसपास आ गई, कुछ ज्यादा वहां पर बड़ा मूव नहीं है। तो ठीक ठाक ग्लोबल संकेत है सर, क्या करके जाएं कल एक्सपायरी से पहले? दीप मतलब बहुत तस्वीर बाहर की भी साफ नहीं है और हमारे यहाँ भी मजबूत रेंज बाउंड मार्केट है। माफ कीजिएगा, मजबूत इसलिए है कि निफ्टी ने इंट्राडे में और क्लोजिंग बेसिस दोनों पर नया रिकॉर्ड बनाने का फैसला लिया। इंट्राडे में तो हम बना ही चुके हैं 11 पॉइंट से, क्लोजिंग बेसिस पे भी लगभग 11 पॉइंट ऊपर दिख रहे हैं। 16,624 की जो बेस्ट क्लोजिंग आपको मिली थी कल की, उससे थोड़ा ऊपर दिख रहे हैं। तो आज लाइफ टाइम हाई पर बंद होंगे तो निफ्टी कहीं से दूर दूर तक कमजोर है नहीं। बैंक निफ्टी अभी भी कमजोरी दूर करने के प्रयास कर रहा है, मजबूत नहीं हो पाया। 35,600 के ऊपर बंद हो रहा है, 35,500 के ऊपर बंद हो रहा है तो बुरा नहीं है, लेकिन मजबूत भी नहीं है। तो बैंक निफ्टी न्यूट्रल सा बंद हो रहा है, निफ्टी मजबूत बंद हो रहा है। तेजी की पोजीशन बरकरार रखें निफ्टी में है तो आपके पास जो लोग हेज करना चाहें 16,500 का पुट खरीद लें या फिर 16,800 का कॉल बेच लें, ये सिंपल है। बैंक निफ्टी 35,000 नीचे 36,000 ऊपर, ये आपके लिए रेंज है और इस रेंज के लिहाज से आपकी जो भी पोजीशन है न्यूट्रल है, चाहे लॉन्ग है तो आप हेज करके चलें पुट लेकर। 35,000 का शॉर्ट है तो 35,800 या 36,000 का कॉल बेच दें। आपको मतलब शॉर्ट है तो हाँ आप नीचे का पुट में कॉल बेचकर भी आप कर सकते हैं। अपनी हेजिंग करके चलें, कहने का मतलब ये है कि ऑप्शंस के जरिए हेज कर लें और अपनी पोजीशन को बरकरार रखें। एकदम बैलेंस मार्केट बंद हो रहे हैं बीचों बीच में, तो मुझे निफ्टी में लॉन्ग रहने में कोई हर्ज नहीं है। बैंक निफ्टी में अगर आप लॉन्ग हैं तो आप अपने आप को हेज करके चलें और शॉर्ट है तब भी आप ऊपर की तरफ हेज कर ले। बीचों बीच में आप चूंकि बंद होते हुए दिख रहे हैं, ये आपके लिए राय। लेकिन ओवरऑल जो क्लोजिंग होती दिख रही है लाइफ टाइम हाई के आसपास है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। आइए बढ़ते हैं आगे। और जिस स्टॉक का अभी हम जिक्र कर रहे थे जो ऊपर के सर्किट पर लगा हुआ, वो है 3i इन्फोटेक। क्या कुछ होने जा रहा है 3i इन्फोटेक में शुक्रवार से, क्या है डिटेल्स? देवांशी हमारे साथ हैं तैयार बताने के लिए। देवांशी बताइए। सर काफ़ी इंटरेस्टिंग ये व्यू बनता हुआ दिख रहा है 3i इन्फोटेक पर। आप देखिए 30 अगस्त से ये जो शेयर है वो डीलिस्ट हो जाएगा, लेकिन ये एकदम टेम्पररी डीलिस्टिंग होता हुआ दिखेगा। कुछ समय के बाद ये वापस से रीलिस्टिंग होते हुए दिखेगी। कंपनी जो है वो एक रीस्ट्रक्चरिंग करती हुई दिखी है, लेकिन अब तक जो फाइनल डेट्स हैं कि वो कब तक रीलिस्ट होगा वो बाहर निकल के आती हुई नहीं दिखी है। मैं आपको सबसे पहले स्कीम ऑफ अरेंजमेंट बता देती हूँ। जो कंपनी की फेस वैल्यू है वो फिलहाल 10 रुपये है प्रति शेयर पर। अब वो जो फेस वैल्यू है वो कंपनी कम कर देगी, हर शेयर की जो फेस वैल्यू है वो 1 रुपये प्रति शेयर हो जाएगी। इसके साथ ही नंबर ऑफ शेयर सेम रहेंगे, लेकिन अब इसके बाद जो सेकंड पॉइंट होगा उसमें कंपनी जो नंबर ऑफ शेयर्स है उसको कम कर देगी, यानी कि हर 10 शेयर्स के बदले में जो निवेशक हैं उनको 1 शेयर मिलता हुआ दिखेगा और उसकी जो फेस वैल्यू है वो बढ़ा के 10 रुपये वापस कर दी जाएगी, यानी कि कैपिटल रिडक्शन 90% का हो जाएगा। अगर आपके पास मान लीजिए 10 रुपये के 10 शेयर्स हैं, 10 रुपए के जो फेस वैल्यू है उसके 10 शेयर्स हैं, तो आपकी टोटल आपके पास करीब 100 रुपए हुए। वो आप बेचते हैं कंपनी को
अब आपकी जो फेस वैल्यू है वो 10 रहेगी, लेकिन आपको इसके बदले में एक शेयर मिलेगा 10 रुपए का, तो 90% की कैपिटल रिडक्शन हो जाएगी। लेकिन आप देखिए जितने भी निवेशक हैं वो काफी ज्यादा इस पे बुलिश होते हुए दिख रहे हैं। लगातार 2 दिन से ये स्टॉक अपर सर्किट पर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। अब इसकी 2 वजह है। सबसे पहले सारे निवेशक ये मान के चल रहे हैं कि कंपनी की जो प्लान्स है वो काफी बड़े हैं। कंपनी ने एक बड़ा स्टेटमेंट कुछ ही दिन पहले दिया था। इनका कहना है कि 2030 तक $1 बिलियन तक की जो आय है वो कंपनी अचीव करना चाहती है। जितने भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, 5G है, इसके लिए वन स्टॉप सोल्यूशन बनना चाहती है और कंपनी इस पर लगातार प्रयास करती हुई दिख रही है। लगातार कंपनी अपना डेट कम करने पर लगी हुई थी और साथ ही मैं आपको बता दूं अब कंपनी एकदम कर्ज मुक्त है, तो इससे भी जो बुलिश स्टांस है वो आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है। इसके साथ ही मैं आपको इंटरेस्टिंग बात ये बता दूं कि पब्लिक की जो शेयर होल्डिंग है इस कंपनी में वो 100% है। प्रमोटर्स 0% इस कंपनी में होल्ड करते हैं, तो ये एक इंटरेस्टिंग बेट बनता हुआ दिख रहा है और रिस्क भी है। आप देखिए ये देखना होगा कि आने वाले समय में क्या ब्रेक इवन होता है, यानी कि अगर आप देखें तो 10 रुपीज का जो ओवरऑल वैल्यू है जब ये रीलिस्ट होता है तब ये किस प्राइस पर रीलिस्ट होता है। इन्वेस्टर्स यही मान के चल रहे हैं कि ये बहुत ही बड़े उछाल के साथ इसकी रीलिस्टिंग होती हुई दिखेगी और इसी के चलते इतना बुलिश स्टांस फिलहाल 3i इन्फोटेक पर बनता हुआ दिख रहा है। लेकिन अनिल जी काफी इंटरेस्टिंग बात बन रही है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अनिल सर बिल्कुल, और अनिल सर आपसे भी इसी पर व्यू लेना था। एग्जैक्टली कब रीलिस्ट होगा ये नहीं मालूम, फ्राइडे की क्लोजिंग के बाद टेम्पररी सस्पेंशन हो जाएगा इसका, बट कैसे देखें सर, क्योंकि निवेशक मान रहे हैं कि शायद जब रीलिस्टिंग होगी तो बड़ा फायदा हो सकता है, बट कैसे समझें इसे सर? दी पहली चीज सिंपल चीज है, अगर आपके पास 100 शेयर हैं तो आपके पास शेयर रह जाएंगे 10, यानी कि आपके पास 10% ही शेयर रह जाएंगे। आपके पास 10 शेयर हैं तो आपके पास रह जाएगा शेयर 1, ये समझ लीजिए। फेस वैल्यू वापस आपकी 10 की 10 हो जाएगी, तो बेसिकली आपकी 90% कैपिटल उड़ गई। सारी स्कीम के रीअरेंजमेंट के बाद आपके पास 90% कम शेयर बचेंगे, ये ध्यान में रखिए। तो क्योंकि पहले रिडक्शन, फिर फेस वैल्यू का रिडक्शन, फिर कंसोलिडेशन, फिर फेस वैल्यू वापस 10 पे आना, इन सारे के बीच में कंफ्यूज होने के बजाय मैं आपको सिंपल सा बता दूं, आपके पास सिंपल सी बात है, अगर आपके पास इस वक्त 100 शेयर है तो वो 100 शेयर 10 रुपए की फेस वैल्यू वाले, अभी 10 रुपए फेस वैल्यू है, घटाकर सारी स्कीम अरेंज होने के बाद आपके पास ये शेयर बच जाएंगे 10 और फेस वैल्यू भी रहेगी 10। तो फेस वैल्यू सेम रहेगी, नंबर ऑफ शेयर्स 90% कम हो जाएंगे। अब स्टॉक शायद इसलिए बढ़ रहा है कि लोगों को लग रहा है कि जो स्कीम ऑफ अरेंजमेंट और ये सारी सब कुछ होने के बाद कंपनी टर्न अराउंड हो जाएगी, इक्विटी रिडक्शन हो जाएगा, बैलेंस शीट क्लीन हो जाएगी, वो अपने अपने रीजंस हो सकते हैं जिसकी वजह से ये स्टॉक तेजी में आ सकता है। आइए शो समापन करें उससे पहले जल्दी से एक बार किरण जी से उनकी कॉल ले ली जाए। किरण जी बताइए, आखिरी मिनटों में आपकी कॉल। अनिल जी, बीटीएसटी के लिए नेशनल एल्यूमिनियम लेके चलना है, नेशनल एल्यूमिनियम बाय करने की सलाह है। इधर से मुझे लगता है कल सवेरे 85, 87 के लेवल्स देखने को मिल जाने चाहिए, स्टॉप लॉस रहेगा 81। ओके, एकदम घंटी बजने के पहले वो आपको वैसी फीलिंग आई होगी जब वो एग्जाम खत्म होने वाला होता है, आपका मतलब क्वेश्चन आप पूरा आंसर लिख नहीं पाए और वो एग्जामिनर आ जाता है, कॉपी दो कॉपी दो कॉपी दो, आप बोले थोड़ा 1 मिनट और सर 1 मिनट और सर 2 लाइन और लिखनी है, और फिर वो खींच के ले जाता है ना? वैसे ही हुआ ना किरण जी? ट्रू, एकदम वैसे ही हुआ। एकदम आखिरी 10 सेकंड रह गए थे तब ये कॉल आ गया। नहीं, अगर ऐसी फीलिंग आई तो बहुत गलत बात है किरण जी। मैंने ऐसा कोई कॉपी खींचने जैसा कोई प्रयास किया नहीं। मैंने घंटी बजने के बाद भी आपको पूरा बोलने दिया, मैं रुका नहीं कि घंटी बज गई किरण जी अब बस रुक जाइए, आगे मत बोलिए। वहां पे तो घंटी बजने के बाद लिखने भी नहीं देते हैं, आपको तो मैंने पूरा बोलने दिया। बिल्कुल दूसरा मेरा दिल बड़ा है, देखिए कितना फर्क है। आइए फिलहाल क्लोज। जी किरण जी। अनिल जी, पर जो कॉल आपके दर्शकों के लिए था वो उनको मिला नहीं द लास्ट 10 सेकेंड्स के लिए, इसका खेद है। हाँ, तो बिल्कुल सही है। तो ये इसलिए मैंने फिर भी मुझे भी पता था कि 20 सेकंड ही बचे हैं। 20 सेकंड में आप कोई बेन जॉनसन तो है नहीं कि 200 मीटर भाग जाएंगे, उनका 9.5 सेकंड का रिकॉर्ड है, राइट? तो मतलब उतनी स्पीड तो अपनी है नहीं, लेकिन फिर भी मैंने कहा कम से कम दर्शकों को कल के लिए ध्यान तो रहेगा कि नेल्को एक ऐसा मजबूत स्टॉक है जिस पर कल हमें ध्यान रखना है। किरण जी ने हमें जाते जाते बोल दिया है, तो मैंने कहा इन्फॉर्मेशन तो चली जाए, एग्जीक्यूशन हो ना हो कोई बात नहीं।
आइए बढ़ते आगे और अब आज की फाइनल क्लोजिंग आए उससे पहले प्रोविजनल क्लोजिंग आपके सामने रख दी जाए 16,633 ये निफ्टी की क्लोजिंग और फाइनल क्लोजिंग भी आ चुकी है 16,634 10 अंकों की मजबूती के साथ रिकॉर्ड हाइस पर बंद हुए हैं भारतीय बाजार। निफ्टी का जो क्लोजिंग है और इंट्राडे लेवल दोनों अब तक का सबसे उच्चतम स्तर है। सेंसेक्स 56,198 ये हाइस बनाकर हल्के लाल निशान में बंद होता हुआ नजर आया है और बैंक निफ्टी 125 अंकों की कमजोरी के साथ आज हुआ है बंद। हमारे इन हाउस फार्मा एक्सपर्ट हेल्थ एक्सपर्ट बंसल जी हैं। बंसल जी, ये आप भी इस तरह की फीलिंग आ गई क्या, वो पेंडेमिक से एंडेमिक वाली के ठीक है अभी क्या कोरोना आ गया चला गया अब क्या डरना, अब इनसे हम सब आगे बढ़ चुके हैं, इस तरह की फीलिंग है आप में भी? नहीं देखिए अनिल जी, मेरे अंदर अनिल जी ऐसा नहीं है कि डरना नहीं। अनिल जी डरने वाली फीलिंग तो बिल्कुल पूरी है, बट ये पेंडेमिक एंडेमिक को अनिल जी मैं दूसरे एंगल से देख रहा हूँ। अनिल जी सबकी देखिए अपनी तरीके की इंग्लिश होती है, अपनी तरह की अंडरस्टैंडिंग होती है। मैं तो अनिल जी एंडेमिक को ऐसे मान रहा हूँ कि ये शायद कोविड अब चला गया है, जा रहा है, जाने वाली स्टेज है, मतलब कि जो होता है ना हाथी निकल गया पूंछ रह गई, तो बस वो वाली स्टेज है। तो मैं अनिल जी एंडेमिक को उस तरीके से देख रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि हम लोग जो है भारतीय हैं वो कुछ अलग है, डर गए। डर तो अनिल जी पूरा है, बट ऐसा लग रहा है कि कोविड चला गया है या जा रहा है। चलो बढ़िया है, हाथी निकल गया पूंछ रह गई और ये पूंछ भी आसानी से बाहर निकल जाए। आजकल मुझे लगता है वो आप क्रिकेट विकेट ज्यादा देख रहे हो, कौन सा एक चैनल पे आ रहा है ऐसा हाथी निकल गया पूंछ रह गई, वो वाला एंड मैंने भी देखा। अब किसका था वो तो ध्यान से निकल गया, लेकिन देखा जरूर था। और भाई तो जय, आज आपका कैश का ऑप्शन किधर था? आज आपने तो दिया ही नहीं पूरे क्लोजिंग शो में। जी अनिल जी आज फर्स्ट टाइम मैंने ये अलग तरह का एक ऑप्शन मैंने चूज किया है, वो है नोटा। सो मैंने आज तक कैश के ऑप्शन में कभी नोटा यूज नहीं किया अनिल जी, बट आज मुझे ऐसा लगा कि ऑलरेडी निफ्टी का कॉल हमारा ओपन है 16,700 का और मार्केट काफी रेंज बाउंड हो गया है। अनिल जी मैंने आपकी भी कमेंट्री सुनी, सोचा शायद आपसे कुछ सपोर्ट मिल जाए और आपको भी एकदम परफेक्ट था, तो आपका सपोर्ट मुझे मिला नोटा में, तो मैंने नोटा का उपयोग किया आज। चलिए बढ़िया, लेकिन सब ध्यान रखना पड़ता है। और वैसे भी आज मैं थोड़ा जय इतनी दिनों की लंबी छुट्टी के बाद आए, तो मैं वैसे आज के सेशन को जय के लिए वार्म अप सेशन के तौर पर मानता हूं। आज थोड़ा वार्म अप के मूड में थे, आज कल से फुल फ्लेज पूरे जोश खरोश में आपको दिखेंगे जय ठक्कर भी और हमारे बाकी एक्सपर्ट भी। विदा लेने का वक्त है आप सभी से। दिल्ली के हमारे खास मेहमान आशु सर, कुणाल जी, राकेश जी, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। पुणे वाले हमारे किरण जी का भी दिल से धन्यवाद। मुंबई वाले सचिन जी और जय ठक्कर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे लिए वक्त निकालने के लिए। मुझे और दीप को दीजिए इजाजत, बने रहिए हमारे साथ जी बिजनेस पर। नमस्कार।